क्वालिफिकेशन MA हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, एमएड इन HR। इसके साथ ही विशेष शिक्षा में आदरणीय सर जी PhD है। इसके साथ ही नेट, MH, सेट, GSET से भी सर जी जो है वो क्वालिफाइड है। इसके साथ ही दिव्यांग क्षेत्र में लगभग 20 साल से भी ज्यादा का अनुभव आदरणीय सर जी को है। इसके साथ ही डॉक्टर संतोष यादव सर जी एज अ प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, श्री KL इंस्टीट्यूट टीचर ट्रेनिंग सेंटर भावनगर गुजरात में आदरणीय सर जी कार्यरत है। इसके साथ ही बेस्ट टीचर स्पेशल एजुकेटर अवार्ड 2016 में आदरणीय सर जी को जो पुरस्कार जो है सर जी पुरस्कृत है। मैं आदरणीय डॉक्टर संतोष यादव सर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया आज का मार्गदर्शन हमारे पार्टिसिपेंट को करने की कृपा करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। बिफोर स्टार्ट कर सकते हैं या टाइम का वेट करें तब तक सब लोग आ जाएं? 10:30 बजे कर दे सर, कोई दिक्कत। हाँ, तो तब तक आप इन लोगों से बातें करिए तो ठीक 10:30 से स्टार्ट करें ताकि लोगों को ये ना रहे कि हमारा सेशन छूट गया हमसे। ओके सर, ओके सर, हाँ, ओके। सभी पार्टिसिपेंट्स और आज के हमारे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर संतोश यादव सर जी का हम अमर ज्योति फाउंडेशन की ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और ठीक 5 मिनट के बाद हम हमारे इस सेशन को शुरुआत करेंगे। सर मैं तब तक एक वीडियो ऑन कर लूं? यस सर, यस सर। हाँ, तो फिर जब तक नहीं आ रहे तब तक मेरा एक वीडियो का जो इंट्रो है वो मैं तब तक पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद फिर चर्चा करता हूँ। यस सर, यस सर, यस सर। सभी लोगों को वीडियो सुनाई हो तो बस एक चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा कि हाँ सर सुनाई हो रहा है। अक्षय सर प्लीज बता दीजिएगा। यस सर। One, two, three, four. सर सुना रहा है? यस सर, सुनाई दे रहा है सर। केवल सर। Today is my first day and I will be taking all your science subjects, so let's start off on a good note. Not that note, thank you. So let's start with a nice round of introductions. My name is Sakshi and I love working with young people. Ma'am, my name is Anish. I was a topper last year.
My IQ is 145 and I've got double promotion once. My name is Andy. I like dancing. My name is Chetan and I like to play the guitar. Okay, everyone's done except the last roll number. Zara? Where is Zara? Zara is a zombie. 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 Zara is a Class, settle down. Gaurav, I'm gonna kill you. Hi, how was your day? Good morning, class of rowdies. You do know that's the name the rest of the school has given you, right? This month, I will not lead the class. You will. Every day, 2 students will come here and present anything that they are passionate about. There is only one rule. You must show respect. So who is courageous enough to accept the challenge? Ma'am, anything? Yes, anything. Our topic is everything you wanted to know about the birds and the bees. But we're afraid to ask. Sequined in the night sky as the stars shine, they tell a million stories, some of yours and a few of mine. Today, we both will be teaching you the secret of flight by building a rocket. That balloon over there is also a rocket, but it does not go very far as it does not have any wings to give its flight a direction. So you see, in life, it is very important to have something, Or someone. yes, or someone, who can give you direction every time you're going astray. It helps you go very far in life. Good morning, class. Today we have prepared a very interesting topic for the class. Today I'm going to tell you about the physics of dance. But before that, my friend here is going to give you a small demo. Can I ask you something? Your class of rowdies has really changed. How did you manage it? I haven't done anything. I just created a space where no one is judging them, where they can learn through their own interests. Hi, class. Good morning, ma'am. So everyone's done with their session except Zara. Zara, come on. Zara, Zara. Every rowdy class has a voice, waiting to be heard, wanting to be understood, wishing to be loved.
Thank you, ma'am, for listening to us. Thank you for not giving up on us. Thank you for finding the reason for our rowdiness, for giving a channel to our craziness. Thank you, ma'am, for finding the poet in a zombie, and for setting me free, for letting me be. No matter where we go and what we do, we'll always carry in our hearts a part of you. Dear ma'am, thank you. मजा आया देख के वीडियो? चैट बॉक्स में या ओपन करके चैट बॉक्स में ही बताइए, या फिर वॉइस ऑन करके बोलिए मजा आया देख के। हेलो ऑल, आप लोग सुन पा रहे हैं ना मुझे? यस सर, ऑडिबल सर। हाँ जी जी, सुरेश मिश्रा जी, ऑडिबल ऑडिबल, हाँ बढ़िया। तो ऐसे ही बोलते रहेंगे तो मुझे एक आप लोगों की तरफ से मोटिवेशन मिलेगा, फीडबैक मिलेगा कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। तो मेरे बारे में तो बातें हो चुकी हैं, सर ने, अक्षय सर ने बता दिया कि मैं कौन हूँ, और जो मुद्दा दिया गया, मुद्दा का मैंने एक थोड़ा सा क्लिप आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है कि मुद्दा मुझे क्या दिया गया है। हम सभी लोग कहीं न कहीं टीचर हैं और टीचिंग कर रहे हैं किसी न किसी क्लास में, चाहे वो प्राथमिक लेवल का हो, चाहे वह पूर्व प्राथमिक का हो, चाहे उच्च प्राथमिक का हो, चाहे माध्यमिक का हो, चाहे उच्चतर माध्यमिक का हो, कहीं न कहीं सभी लोग पढ़ा रहे हैं, चाहे कॉलेज में हो। कुछ लोग कॉलेज में भी काम कर रहे होंगे और कुछ लोग एलिमेंट्री स्कूल के नीचे जो प्री प्राइमरी स्कूल है उसमें काम कर रहे होंगे, कुछ लोग एलिमेंट्री स्कूल में काम कर रहे होंगे। सभी लोग काम कर रहे हैं। उनकी क्लासों में अगर हम स्पेशल जो लोग स्पेशल स्कूल में हैं तो उनकी क्लास में 10 से 12 बच्चे होंगे, और जो लोग जनरल स्कूल में काम कर रहे होंगे उनकी क्लास में 35 बच्चे होंगे, 40 बच्चे होंगे। ऑलराइट, तो ये बच्चे आप सभी की क्लासों में दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसी क्लास हमें हर जगह दिखाई पड़ती है, ये जरूरी नहीं खाली हमें एक ही जगह क्लास दिखाई पड़ रही है। ऐसे क्लास के बिहेवियर, क्लास में जो डाइवर्सिटी है वो दिखाई पड़ती है। ये राउडी क्लास ऐसे ही नहीं बनी थी। राउडी क्लास बनाने का जिम्मा, वो बनाने का जो काम है, कहीं न कहीं हम और हमारा समुदाय ही बना देता है। हम उनकी डिफरेंशिएशन को नहीं पहचान पाते, हम उनकी इंडिविजुअलिटी को नहीं पहचान पाते हैं। वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह से उनका लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, वो नहीं हम जान पाते हैं। वो कहाँ किस वस्तु पे कैसा बिहेव कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम वो नहीं पहचान पाते हैं। हम सभी टीचर हैं और हम ये पढ़ के भी आए हैं। जो बाल मनोविज्ञान है और जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, शिक्षा मनोविज्ञान है, वो हमारा एक पार्ट होता था ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग में हमें सब पढ़ करके आए, फिर भी हम बच्चों को नहीं जान पाते। बहुत बढ़िया, इसी को लेकर के जो ये मुद्दा लिया गया है, काबिले तारीफ मुद्दा लिया गया है अमर ज्योति फाउंडेशन के द्वारा। जो मुद्दा लिया गया है, मैनेजिंग माल एडेप्टिव बिहेवियर ऑफ स्टडी स्टूडेंट विद एंड विदाउट डिसेबिलिटी इन द क्लासरूम एंड होम। ऐसे बच्चे, जहाँ पे ऐसे राउडी टाइप के बच्चे दिखाई पड़ते हैं, उनको लोग कहीं कुछ शब्दों में माल एडेप्टिव कह लेते हैं। उनको कहते हैं कुसमायोजित, यानी वह समाज में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं। क्या हम ये श्रेय उनको ना देकर के अपने को ले लें? ये हम अपने आप को, हम उनको अपने आप में समायोजित नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम क्यों दोष दें? वो बच्चे हैं ही भगवान की देन। उनके अंदर में ये कुछ समायोजन, माल एडेप्टेशन आया कहाँ से? ये कहीं न कहीं तो यहीं से आया ना, समाज के जरिए, या हमने उनको कहीं डिनाई कर दिया होगा, हमने उनकी बात को सुना नहीं होगा, हमने उनको हमेशा जज किया होगा। जैसे इस क्लास में आपने देखा कि जज किया गया है, हर बच्चे को जज किया गया। अरे वो तो चिट्ठी पे लिख रहा है आई लव यू, अरे वो तो जहाज बना करके फेंक रहा है, अरे वो तो पीछे जा रहा इज अ डॉम्बी, जा रहा इज अ डॉम्बी।
डोम्बी डोम्बी कह करके उसको पुकारा जा रहा है कि ज़ारा इज अ डोम्बी, पीछे वह डोम्बी टाइप की है। कुछ बच्चे हैं जो कि वह मोटापे की वजह से उनका दिमाग उतना नहीं चल रहा है, और कुछ बच्चे म्यूजिक डांस में लगे हैं। ऐसे सारे, इवन क्लास तो क्लास के आउटसाइड भी, आउटसाइड द क्लास टीचर्स भी वही जान रहे हैं कि भाई ये तो राउडी क्लास है, तुम कैसे मैनेज करोगी। तो पहले दिन जब टीचर बाहर निकलती है तो ऐसे ही लगता है कि टीचर तो गई, मतलब इसने तो ये चली गई, बट टीचर ने वो वे अपनाया कि क्या हम इनके जैसा बदल करके देखें, क्या पहले हम ये देखें कि इनके अंदर में क्या कौन कौन से हुनर कौन कौन से है। तो उसने कहा कि मैं नहीं पढ़ाऊंगी, आप लोग खुद क्लास को मैनेज करोगे। तो क्लास में मैनेज करोगे। बच्चे ने कहा कि क्या हम अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं? बोले, टीचर ने बोला हाँ कुछ भी कर सकते हो। तो सारे बच्चों ने जो उनके अंदर में प्रतिभा थी, देखा कि ज़ारा डोम्बी ज़ारा एक बढ़िया सी कविता कहती है लास्ट में कि थैंक यू मैम, आपने हमें स्पेस दिया, थैंक यू मैम, आपने हमारी प्रतिभा को पहचाना, थैंक यू मैम, आपने हमें कहने का मौका दिया, थैंक यू मैम, डोम्बी ज़ारा को आपने पहचाना, थैंक यू मैम, आप वो ऐसे बच्चों को जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे काम करते आपने उनको पहचाना, थैंक यू मैम, आपने इस राउडी क्लास को राउडी से हटा करके एक पहचान बनाई, थैंक यू मैम। तो एक कविता के माध्यम से वो बताती है, तो यानी कि जो डोम्बी गर्ल थी, वो डोम्बी गर्ल भी जिसके अंदर में साइनेस भरी हुई थी, वह साइनेस भी उसकी निखर के आती है। यही सारी बातें, यह जो 3 दिन का प्रोग्राम है, इन 3 दिन के प्रोग्राम में अलग अलग रिसोर्स पर्सन आपको आपके बीच में चर्चा करेंगे, जिसके बारे में अक्षय सर ने आपके साथ में चर्चा करी है, बताया है। मैं पूरे जो अमर ज्योति फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन के जितने भी ट्रस्टीगण हैं और जो इनके फाउंडर हैं, जो डायरेक्टर हैं, और संस्थान में चल रहे कोर्सेज के जो कोऑर्डिनेटर हैं, प्रोग्राम को जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनके कोऑर्डिनेटर धनंजय सर, और साथ में हमारे मित्र जैसे जुड़े हुए हैं सर, उनका और बाकी सारे लोग, सारे पार्टिसिपेंट्स का मैं डॉक्टर संतोष यादव, श्री शाह के इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की तरफ से जो आपके बीच एज ए रिसोर्स पर्सन उपस्थित हुआ हूं, आप सभी का वंदन और अभिनंदन करता हूं। मुझे इस आपके 3 दिवसीय कार्यक्रम में अपनी बात कहने का मौका दिया गया है, तो मैं इस मौके देने के लिए और अक्षय सर ने जैसा मेरा परिचय दिया, उस परिचय के लिए मैं अक्षय सर का बहुत शुक्रगुजार हूं, और आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप मुझे 1 घंटे सुनेंगे। तो ये सब चर्चाएं जो है वो होती रहेंगी। मेरा संस्थान नाम ही जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, शाह केएल इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ बच्चों के लिए, मूक बधिर बच्चों के लिए ये संस्था काम कर रही है। भावनगर में संस्था उपस्थित है और संस्थान में लगभग 400 डेफ बच्चे काम कर रहे हैं, और ट्रेनिंग कॉलेज में बीएड और डीएड कोर्स चलता है। तो हम सतत और कंटिन्यूअस हम पुनर्वसन के रूप में, एजुकेशन के रूप में काम कर रहे हैं, और हमारी भी कोशिश यही रहती है कि अगर कोई बच्चा विद्यालय में प्रवेश किया है, अगर कोई बच्चा विद्यालय में आ रहा है, विद्यालय की चार दीवारी में अगर उसने इंटर किया है, प्रवेश किया है, तो वो सारी जिम्मेदारी हमारी बन जाती है एज ए टीचर, एज ए मैनेजमेंट, एज ए प्रिंसिपल, एज ए स्टेक होल्डर। वो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम बच्चे को, उसकी प्रतिभा को निखारें, उसके व्यवहार में परिवर्तन करें, उसके अंदर में एक ऐसी ज्योति, जो अमर ज्योति जो जलाना चाह रही है, वैसी ज्योति उसके अंदर से निकाले, वो प्रकाशमान करे, जो कि भगवान ने उसको दिया है। इंसान क्या देगा, इंसान को तो बस निखारना है। जो उसके साथ में जो टीचर्स हैं, जो टार्च बियर्स हैं, उनको बस निखारना है, उनका काम है निखारना। तो निखारने के लिए हम ये चाहते हैं कि अलग अलग बच्चों में जो प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को निखारना। वह प्रतिभा अलग अलग प्रकार में हो सकती है। हार्वर्ड गार्डनर ने बताया कि प्रतिभाओं के रूप में अगर हम देखें तो इंटेलिजेंस 9 प्रकार की होती है। किसी के अंदर में बौद्धिक रूप में इंटेलिजेंस होती है, कोई जो है वह शाब्दिक रूप में किसी के पास इंटेलिजेंस होती है, किसी के पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, किसी के पास काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होता है, किसी के पास इंटरपर्सनल, तो किसी के पास इंट्रापर्सनल, किसी के पास जो है वो प्राकृतिक रूप में बुद्धि होती है। तो बुद्धि के अलग अलग 9 प्रकार को जो उन्होंने बताया, यही क्या है, यही परसेप्शन है, यही एक बिहेवियर है। इस बिहेवियर को जानना, ऐसा कोई भी नहीं बच्चा है, हम कहते हैं आईडी बच्चे समझ नहीं पाते हैं, हम आईडी बच्चों को नहीं समझ पाते हैं। आईडी बच्चे तो आईडी बच्चे, उनके अंदर में भी एक प्रतिभा है। हम कहते हैं ऑटिस्टिक बच्चे और एएसडी बच्चे, पीडीडी बच्चे, उनके अंदर में कोई प्रतिभा नहीं है, उनके अंदर में वो प्रतिभा है जो हम पहचान नहीं पाते हैं। ऐसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं, आइंस्टीन की बात कर लीजिए, चाहे जिसकी बात कर लीजिए, वो सारे लोग ऐसे लोग वैज्ञानिक थे जिन्होंने की अपनी दुनिया में अपनी परचम अपना लहराया है। उनके अगर इस व्यवहार को ना पहचाना गया होता तो ये परचम कैसे लहरता, ये परचम कैसे लहरता, ये होता कैसे।
तो इन्हीं सब बातों को लेकर के चर्चाएं आपके बीच में बहुत सारी होंगी। मुझे जो मुद्दा दिया गया है वो दिया गया है बिहेवियर, बिहेवियर का कॉन्सेप्ट और बिहेवियर के टाइप्स, बस इतने पर ही बातें करनी है। तो मैं इन्हीं के इर्द गिर्द ही घूमूंगा। जैसा मैंने आपके सामने एक बढ़िया से एक आपके बीच एक मैं समा बांधने की मैंने कोशिश करी है कि क्या होता है बिहेवियर, आपको एक विजुअल और एक ऑडियो के माध्यम से, एक क्लिप के माध्यम से मैंने समझाया। ऐसी क्लासें, हेट्रोजिनिटी क्लास हमारी हर क्लास में होती है, उसको होमोजीनियस बनाना हमारा काम होता है। विषमता रूपी क्लास हर क्लास में होती है। हम बात करें खाली एक पर्टिकुलर क्लास की, मेरे विद्यालय में, मेरे इंस्टीट्यूट में, मेरे संस्थान में 10 से 12 बच्चे क्लास में पढ़ते हैं और खाली मूक बधिर बच्चे पढ़ते हैं, डेफ बच्चे पढ़ते हैं। अब डेफ बच्चों में भी अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी होती है। कोई बच्चा माइल्ड होता है, कोई बच्चा मॉडरेट होता है, कोई बच्चा सीवियर होता है, कोई बच्चा प्रोफाउंड होता है, कोई बच्चा सीखने के साथ में, सीखने की क्षमता के साथ में बच्चा जो है वो मूक बधिर है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की भिन्नताओं से भरे हुए बच्चे क्लास में होते हैं। उन क्लास को समझना, उनके बिहेवियर को समझना हमारा काम होता है। तो इन्हीं सब बातों पे चर्चा इन पूरे 3 दिनों में होगी। अलग अलग टूल्स के बारे में चर्चा होगी, अलग अलग उनके टेक्निक्स के बारे में चर्चा होगी, अलग अलग मेथोडोलॉजी के बारे में चर्चा होगी। जो लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबल वाले बच्चों के साथ में काम करते हैं, जो लोग लर्निंग डिसेबल वाले बच्चों के साथ में काम करते हैं, एसएलडी वाले बच्चों के साथ में काम करते हैं, जो लोग हियरिंग इंपेयरमेंट, विजुअल इंपेयरमेंट, इवन कोई भी प्रकार का बच्चा हो जो लोग काम करते हैं, उनको बच्चों के व्यवहार को जानना बहुत जरूरी होता है। बिना व्यवहार के जाने हम यह तय नहीं कर पाएंगे कि बच्चा चाहता क्या है, हम चाहते क्या है, हमारा ट्रैक क्या होगा, हम किस रास्ते पर चलेंगे, हमारा एम क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, हम ये नहीं जान पाएंगे। तो सबसे पहले हमें उसकी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, उसके इंटरेस्ट और उसके क्या इंटरेस्ट नहीं है, किस बैकग्राउंड से आया बच्चा, क्या चाहता है और बच्चा कैसे आगे जाएगा, ये सब बिना जाने हम वो नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, जिन रास्तों को हमको पहचानना है। आइए हम चर्चा करेंगे। हमारे पास जो समय है वह लगभग 1 घंटा, मतलब 11:45 तक का शायद मेरे पास समय है। तो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैं मेरी बातों को वहां तक समाप्त कर सकूं। मेरे पास समय 10:30 से 11:45 का है, तो मैं 11:45 तक मैं कोशिश करूंगी मैं फिनिश कर दूं। चलिए, तो ये मेरा परिचय था। बिहेवियर के बारे में मुझे चर्चा करनी है, बात करनी है, और मेरे बारे में आप थोड़ी बातें जान गए, थोड़ा चर्चा मैंने कर ली। आप सभी लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, तो आप सभी लोगों का वापस से मैं एक बार तहे दिल से मैं धन्यवाद करते हुए, सभी को सुप्रभात कहते हुए, गुड मॉर्निंग कहते हुए और सभी को नमन करते हुए मैं आगे शुरुआत करता हूं। मेरा जो एक स्लाइड है, जो मेरा स्लाइड का जो ओवरव्यू है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। मेरा आज का रोड मैप क्या है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। अगर किसी भी भाई बंधु को अगर नहीं समझ में आएगा या नहीं सुनाई होगा तो प्लीज मुझे रोक करके वो बताएगा कि सर आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, सर जरा एक बार और बता दीजिए, सर एक बार रिवर्स हो जाइए, सर एक बार फॉरवर्ड हो जाइए। आप मेरी कमांड आपके हाथ में, आप जैसा चाहोगे मोड़ोगे, मैं बोलूंगा। बस एक कर्टेसी के माध्यम से अपनी आवाज को वहां से या चैट बॉक्स के माध्यम से अपने आप को ऑन करेंगे, फिर मुझसे एक अनुमति मांगेंगी सर मुझे, या अपने जो ऑर्गेनाइजर उनसे अनुमति मांगेंगी मेरा माइक ऑन कर दीजिए, ऑन करेंगे, आप वहीं से बोल सकते हैं। तो चलिए मैं मेरा रोड मैप की चर्चा करता हूँ। मेरा रोड मैप क्या है उस पर आता हूँ। मैं स्लाइड शेयर करूंगा तो आप लोगों तक पहुंच रही है, बस एक बार मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि हाँ सर आपकी आवाज बिल्कुल अच्छी तरह से पहुंच रही है। तो क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप सभी तक? बस मुझे सर ऑडिबल सर। ओके, और स्लाइड भी बराबर दिख रही है? यस सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्लाइड भी दिख रही है, सब कुछ बढ़िया है, तो ये बहुत बढ़िया। मैं जरा मेरा कर्सर खोजने की कोशिश करूं, मेरा कर्सर कहाँ है? ओके, तो मेरा जो रोड मैप है वो कुछ इस तरह का होगा। चलिए मिल गया। तो मैं ले लेता हूँ कुछ तो ब्लू कलर का पेन, और पेन को मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा मोटा, तो मोटा नहीं, मुझे पेन ही चाहिए खाली, तो पेन चाहिए, ठीक है। तो आइए मैं चर्चा करूंगा। मेरा जो मुद्दा होगा वह पहला मैं चर्चा करूंगा, आपके बीच में थोड़ा सा परिचय दूंगा। परिचय तो मैंने दे दिया है, थोड़ा सा और परिचय दूंगा। एक जैसा एक कर्टेसी होती है, वो कर्टेसी को मैं भी मेंटेन करूंगा। बिहेवियर जो व्यवहार है, व्यवहार का मैं परिचय दूंगा, अब व्यवहार का अर्थ बताऊंगा, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा। मैं बताने वाला कोई नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं बस आपके साथ में अपने अनुभव को साझा करूंगा और आपके अनुभव को मैं लूंगा। मुझे कुछ नहीं आता है, मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा कि मैं बताऊंगा कुछ नहीं, मैं बस आपके साथ में चर्चा करूंगा। और वो भी चर्चा आप जानते हैं, मेरी एक धृष्टता होगी, मैं उस धृष्टता को साझा करूंगा कि आप लोगों के बीच, आप लोग जानते हैं फिर भी मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, बट उस धृष्टता के लिए क्षमा चाहूंगा। एक आया हुआ है
ये चलन है कि सामने हमें अगर प्रेजेंट करना है तो दृश्यता को लेकर के आना होगा, बट उसमें अगर आप कुछ मेरे से पूछेंगे तो मैं मेरे लेवल पे आपके सामने मैं प्रस्तुत जरूर करूंगा। तो आगे थोड़ी और चर्चा होगी माध्यम से, स्लाइड्स के माध्यम से, डेफिनेशन के बारे में कौन कौन लोगों ने क्या बातें करी, या क्या एक मेजर क्या इसका डेफिनेशन है, इसको कह क्या सकते हैं, परिभाषित रूप में कह क्या सकते हैं व्यवहार को, वो मैं आपके साथ में साझा करूंगा। कुछ बिहेवियर की थियरी किससे आई है, कहाँ से आई है, वह व्यवहार के जो सिद्धांत है वह सिद्धांत कहाँ से आए हैं, और उसका सीखने पर क्या प्रभाव पड़ा उस पर भी मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। और अंत में मैं चर्चा करूंगा कि इसका जो व्यवहार है, व्यवहार का वर्गीकरण कैसे करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियर के बारे में चर्चा करूंगा। तो मेरा जो सेशन है मैं अंग्रेजी में, पीपीटी अंग्रेजी में होगी और मैं आपके साथ में बोलूंगा हिंदी में, चूंकि सेशन या जो एरिया है वह एरिया बैकग्राउंड जो है वह हिंदी, मराठी और गुजराती का मिला जुला रूप है। तो अगर आपको कहीं अंग्रेजी में भी लगे कि हाँ सर ये अंग्रेजी में बताइए, तो मैं आपके साथ में अंग्रेजी में भी आई एम एबल टू कन्वे माय मैसेज इन इंग्लिश, एंड आई एम एबल टू कन्वे माय मैसेज, एंड आई एम एबल टू डिस्कस विद इन इंग्लिश, एंड यू कैन आस्क इन इंग्लिश। आई विल टेल all the my discussion and all the clarification with you। तो आप मुझसे वह सब पूछ सकते हैं जो आप जानना चाहते हैं, मैं उसमें भी आपसे चर्चा कर पाऊंगा। चलिए तो आगे चलते हैं, बात करते हैं कि ये तो मेरा एक ओवरव्यू था, रोड मैप था। रोड मैप की बात मैं चर्चा करूंगा कि क्या इसको बिहेवियर को कहेंगे किसको। तो बिहेवियर क्या है? बिहेवियर इज स्टिमुलस ड्रिवन रिस्पॉन्सेस दैट अकर स्पेसिफिकली विद इन द क्लासरूम, और how students are acting in the classroom in response to what going on present around them। क्या है बिहेवियर? बिहेवियर एक ऐसा वस्तु है जिससे किसी भी स्टिमुलस, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी, आई वॉज डिस्कनेक्टेड। अगर अभी आ रहा है, 5 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो गए थे आप, 5 मिनट के लिए मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओहो, तो ब्लंडर हो गया। मैं सोच रहा था मैं बोल ही रहा हूँ खाली। अच्छा ठीक है, नहीं, अभी जस्ट अच्छा, तो मैं ये वाला स्लाइड आप लोगों ने देखा था, ये वाला स्लाइड ये सब हो गया था? जी सर, हो गया था ये। अच्छा चलिए, तो क्षमा चाहूंगा मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। सेकंड वाला चल रहा। ओके चलिए, तो थैंक यू। तो मैं बात कर रहा था कि बिहेवियर क्या है। तो बिहेवियर किसी भी एक वस्तु जो है उस वस्तु के सामने हमारा व्यवहार है। जैसे अभी यहीं पे आप लोग, मेरा आवाज यहाँ पे ऑनलाइन में ही मेरी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी और इंटरनेट चला गया था, तो मेरा भी इसके सामने मेरा एक बिहेवियर सामने परिलक्षित हुआ। एक कर्टेसी मैंने मेंटेन करी, मैंने आप लोगों से क्षमा मांगा कि मैं क्षमा चाहता हूँ इंटरनेट डिस्कनेक्ट होने की वजह से, इंटरनेट का लॉस होने की वजह से मैं आपके सामने डिस्कनेक्ट हो गया था। तो आप लोगों ने भी मेरे से पूछा कि अरे ये क्या हो गया सर, कहाँ चले गए? तो ये अरे सर फिर डिस्कनेक्ट हो गया सर, संतोष सर जी। हेलो संतोष सर जी, आवाज आ रही है? अभी आया सर, ऑडिबल सर। हाँ, वो एक्चुअली मेरा नेट जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो अब मैंने मेरे फोन से कनेक्ट किया है, तो शायद अब बराबर आवाज रहेगी, तो मैं क्षमा चाहूंगा। यस सर, यस। अब यहाँ से बराबर रहेगा। चलिए, तो मैं बात कर रहा था व्यवहार को, तो ये व्यवहार यही थे, ऐसे ही व्यवहार जो है हमारे सामने दिखने लगते हैं।
जैसे हमारे सामने कोई बात करता है और बात करने पर बात करते समय हम देखते हैं कि हमारी आवाज को कोई नहीं सुन पा रहा है, तो हम उससे पूछते हैं कि अरे भाई आवाज तो दो। या हम रात को सोते रहते हैं, तो सोते समय पे हम किसी से बातें करते रहे और वह हमें हमारी बातों से वह एग्री है कि नहीं है, तो इसलिए ऐसे कर रहा है, तो हमें पता चलता है कि नहीं हमारी बात को कोई सुन रहा है। या कोई हम बात कर रहे हैं, बात करने पर ही मैं यहीं पे आपके साथ में चर्चा कर रहा हूँ और आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैं कोई प्रश्न पूछता हूँ और आप उसमें चैट बॉक्स में लिखते हैं, तो मेरा ये पता चलता है कि नहीं सब कुछ बराबर है। मैं ये देख रहा था कि कैमरा बंद हो गया, तो मेरा कैमरा बंद हो गया और मुझे लगा अरे कैमरा बंद हो गया, वापस से इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, ऐसा लग रहा है। पीपीटी तो चल रही है बट कैमरा बंद हो गया। तो ये इन सब से पता चलता है। ऐसे ही ये सारी बातें हमारे व्यवहार में भी परिलक्षित होती हैं। तो क्या है व्यवहार? क्या है? एक प्रकार का रिस्पॉन्स है। वो रिस्पॉन्स कहीं भी, चाहे वह किसी क्लासरूम में हो, क्लासरूम में वह परिलक्षित होता है और उसी के आधार पे कोई स्टूडेंट जो है वह अपने क्लासरूम में रिस्पॉन्स देता है। कोई बच्चा देता है या हम बात है हम देते हैं, तो ये सब चलता है। या हम कोई टीचर है और वो टीचर जो है कोई बातें बता रहे हैं और बातें बिल्कुल बोरिंग जैसी दिख रही हैं, तो बोरिंग जैसी बातों के दिखने के बाद टीचर क्या करेगा? टीचर तो पढ़ाया जा रहा है बट बच्चे क्या होंगे? बच्चे इधर उधर बातें करेंगे, इधर उधर देखेंगे और बच्चे जो है वो कहीं इससे बात करेंगे, कहीं उससे बात करेंगे, तो इनकी बातें चलती रहेंगी। इस जगह पे क्या होगा? टीचर को पता चलेगा कि बच्चे हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, ये क्लासरूम का बिहेवियर है। तो बिहेवियर हमें कहीं ना कहीं ये बताता है कि बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा होगा। तो ये बिहेवियर है। बिहेवियर के बारे में हमने जैसा चर्चा किया, हमने राउडी क्लास में भी देखा कि राउडी क्लास में आसपास के बच्चे का माहौल कैसा है। बच्चों का माहौल ऐसा है कि उनकी बातों को कोई नहीं देख रहा है, वो बच्चे क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, कैसे वह बात पढ़ना चाहते हैं, अपनी बात को एक्सप्रेस कैसे करना चाहते हैं, इन बातों को कोई नहीं देख रहा है। बस आकर के टीचर आकर के बोर्ड पे लिख जा रहे हैं, लिख करके चले जा रहे हैं। इतने से व्यवहार उनका जो है वो परिवर्तन नहीं होगा। हम उनकी बातों को समझ नहीं पाएंगे, तो उनका एंग्रीनेस हो, चाहे वह उनका हैप्पीनेस हो, चाहे वो उनका वो फ्रस्ट्रेशन हो, यह सब उनके व्यवहार के रूप में परिलक्षित होगा। तो व्यवहार की बातें जो ये हमने सब चर्चा करी। आवाज मेरी पहुंच रही है ना? हेलो। यस सर, यस सर। हाँ जी, तो मैं स्लाइड नहीं शेयर हो रही थी, ऐसा दिख रहा था क्या? स्लाइड शेयर नहीं हो रही सर। हाँ हाँ ऐसा ही है। हाँ ठीक ठीक ठीक, स्लाइड नहीं शेयर हो रही थी। हेलो। हाँ मैं बात करूँ आपसे घंटे बाद। तो ठीक है, अभी स्लाइड शेयर हो रही है ना? यस सर। हाँ ठीक है। तो ये सब बातें क्लासरूम में हमें दिखाई पड़ती है। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ी और चर्चा करेंगे क्लासरूम में और क्या दिखाई पड़ता है। अगर हमें क्लासरूम को समझना है तो क्लासरूम में हम बच्चों को कैसे समझेंगे? बच्चों को एक ऐसे रूप में संगठित करके समझेंगे कि जिससे कि हमें बच्चों का व्यवहार पता चले। व्यवहार हमारे क्लासरूम में बच्चों का व्यवहार बड़ा अलग अलग दिखाई पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक चित्र में दिखाई पड़ रहा है कि एक लड़का पीछे है और एक आगे की बच्ची को जो है उसके बालों को खींचने की कोशिश कर रहा है। तो वो अब ये कर क्यों रहा है बच्चा? उसके पीछे क्या रीजन है? इस प्रकार की वो घटनाएं क्यों कर रहा है? क्या उसका काम हो गया है? हो सकता है मे बी यहाँ पे ये भी हो सकता है कि बच्चे का काम पूरा हो गया हो, बच्चे के लेवल का वो कंटेंट ना हो, इसलिए बच्चा अब वो फ्री हो गया है। या बच्चे के लिए वो जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है क्लासरूम में, जो पढ़ाया जा रहा है वो बात उसके लिए बेहतर ना हो, ये भी हो सकता है। तो यह समझना बच्चे का व्यवहार इतना डिफिकल्ट क्यों है, हम ये समझेंगे। तो ये समझने के लिए हमें बच्चे के बीच में जाना पड़ेगा, बच्चों को समझना पड़ेगा। तो एक तो ये हो गई बात। दूसरी बात करते हैं कि बच्चों का व्यवहार होता कैसा है। तो बच्चों का व्यवहार को समझेंगे कैसे? तो अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, अलग अलग प्रकार की पर्सनैलिटी होती है, अलग अलग प्रकार का परसेप्शन होता है बच्चों का, अलग अलग प्रकार का एटीट्यूड होता है। किसी टीचर को, किसी बच्चे को मैथ सीखना आसान अच्छा लगता है, किसी बच्चे को साइंस सीखना अच्छा लगता है, किसी बच्चे को ड्राइंग करना अच्छा लगता है, किसी बच्चे को म्यूजिक करना अच्छा लगता है, किसी बच्चे को फिजिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, किसी बच्चे को केमिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, किसी बच्चे को कुछ नहीं खाली उसको बातें करना अच्छा लगता है, किसी बच्चे को बैठे रहना, अंदर अंदर ही रहना अच्छा लगता है। तो हर बच्चों की अपनी अपनी अलग अलग प्रतिभा है। तो उन प्रतिभाओं को जानना, उनके एटीट्यूड्स को जानना, उनके वैल्यूज को जानना, उनके परसेप्शंस को जानना, उनका मोटिव्स क्या है, वह यहाँ पे आए क्यों है, वह क्या चाहते हैं वो जानना, उनकी इंस्पिरेशंस को जानना कि वह आगे जाकर के बनना क्या चाहते हैं वो समझना, उनकी एबिलिटी क्या है। यह सब चीजें जो है एक व्यवहार को परिवर्तित करती हैं, व्यवहार को लेके आती हैं। अगर हम इन सारी बातों को समझ लेंगे तो बच्चों के व्यवहार को समझ पाएंगे। हम जब यही बातें नहीं समझ पाते हैं
और हम खाली अपनी बातें थोपते हैं और हम खाली बच्चों को जज करते हैं और हम खाली बच्चों को इवेल्युएट करते हैं, तब बच्चा कहीं न कहीं हमारे एरिया से वो बाहर हो जाता है। हमारे जो पकड़ है या हमारे साथ में जो होना चाहिए वो साथ से पकड़ हो जाता है, हमारी पकड़ से छूट जाता है वो। तो हमें एज अ टीचर, हमें एज अ स्टेक होल्डर, हमें एज अ स्पेशल एजुकेटर, हमारे बच्चे तो और भी ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, हमारे बच्चों के पास तो और भी ज्यादा इससे कहीं हट करके उनके पास जो चैलेंजेस है वो होती हैं, तो उनको हमें समझना जरूरी है। आइए थोड़ी और चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो बिहेवियर को समझेंगे। बिहेवियर क्या है? बिहेवियर इज हाउ समवन एक्ट। बिहेवियर क्या है? तो बिहेवियर को कहेंगे कि बिहेवियर क्या है, वह कोई भी व्यक्ति कैसे एक्ट करता है उसको समझेंगे, वह है बिहेवियर, उसे कहेंगे बिहेवियर। और बिहेवियर में उसे कहेंगे कि एक पर्सन, एक व्यक्ति अपने बात, वह एक जगह पे एक वस्तु को कैसे अलग अलग रूपों में घटित कर रहा है। एक बच्चे का व्यवहार एक व्यक्ति है उसके सामने कैसे घटित हो रहा है, दूसरा व्यक्ति है उसके सामने कैसे घटित हो रहा है, तीसरा व्यक्ति है उसके सामने कैसे घटित हो रहा है, यही उसका व्यवहार है। हम अपने आप को देखें, हम सभी अगर हम अपने अपने आप को देखें तो देखते हैं कि दिन भर में हम हमारे ही खुद के रूप कितने रूपों में बदल कर ये दिखाई पड़ते हैं। हम जब घर में होते हैं तो घर में हमारा व्यवहार अलग तरीके का होता है, हम जब वर्किंग प्लेस पे आते हैं तो हमारा व्यवहार अलग तरीके का होता है, हम जब मार्केट में जाते हैं तो हमारा वर्किंग प्लेस अलग हो जाता है, हम जब बॉस होते हैं तो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो नेचर है, हमारा जो व्यवहार है अलग तरीके का होता है, हम जब इम्प्लॉय बन जाते हैं तो इम्प्लॉय के रूप में हमारा जो व्यवहार है वो अलग बन जाता है, हमारे जब गुरु जी आते हैं, हमारे जब टीचर्स आते हैं उनके सामने हमारा व्यवहार बदल जाता है, जब हम किसी के गुरु बन जाते हैं तो हमारा टीचर बदल जाता है। तो ये क्या है? अलग अलग व्यवहार है। इन अलग अलग व्यवहार में, इन अलग अलग सिचुएशंस में, इन अलग अलग घटनाओं में व्यक्ति का व्यवहार जो है वो अलग अलग बनता है, इसी को कहते हैं व्यवहार। व्यवहार का मतलब है किसी भी एक सिचुएशन को देख करके व्यक्ति कैसे घटित हो। एक आध दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बात करें कि अगर कोई व्यक्ति है, हाँ मैं उनको बोलो बाद में बात करूं, तो अब ऐसी घटना में मान लीजिए जैसे मैं कहूं कि मैं यहाँ पे बैठा हूं और बैठे बैठे मुझे किसी ने गुदगुदी करी तो गुदगुदी करने पर एक व्यक्ति को तो गुदगुदी हुई और दूसरे व्यक्ति को गुदगुदी नहीं हुई, यानी वह गुदगुदी करने का किसी एक व्यक्ति पर घटना उसका असर हो रहा है और दूसरे व्यक्ति पर उसका असर नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति किसी एक कोई ऐसा वस्तु है जिस वस्तु को देख करके, या मान लीजिए हम घोस्ट को देख ले, घोस्ट मतलब भूत, या हम किसी प्रेत को देख ले, प्रेत नहीं देखे हम, खाली ऐसे ही प्रेत का कोई एक प्रतिमा देख ले और कोई व्यक्ति देख करके उसको डर जाए, और एक व्यक्ति उसी प्रतिमा को समझे अरे ये तो कुछ नहीं है, तो एक स्केयर्स है, स्केयर समझ करके उसको बोले कि अरे स्केयर को कौन जानता है, ये तो जो है वो कनखजूरा है, कनखजूरे को कौन देख करके डरता है। तो कनखजूरे को देख करके एक व्यक्ति डर रहा है, दूसरा व्यक्ति नहीं डर रहा है। तो इन दोनों व्यक्तियों के क्या है, वह अलग अलग व्यवहार है, अलग अलग व्यवहार है। एक व्यक्ति उसी चीज को लेकर के वो अपनी बातों को बता सकता है, दूसरा व्यक्ति उसी बातों को लेकर के नहीं बता सकता है, दूसरा व्यक्ति उसी को लेकर के अपनी बातों को नहीं अभिव्यक्त कर सकता है। ये बातें जो है वह व्यवहार को दर्शाती है। चलिए थोड़ी और चर्चा करेंगे और बात करेंगे, तो हम चलेंगे, देखेंगे कि व्यवहार और क्या है। तो व्यवहार इज ए रिस्पॉन्स, क्या व्यवहार को कहेंगे रिस्पॉन्स टू थिंग दैट आर हैपनिंग। मतलब क्या है, एक हमारा रिस्पॉन्स है। जैसे देखिए आप चित्रों में देख पाइए, ऊपर चित्र एक दिखा रहा है कि एक महिला है और एक इस तरफ पे एक पुरुष है। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि ये वुमन, यहाँ पे एक लड़की है और एक लड़का है, और ये दोनों, या हम एक को कहे मैन, कहे वुमन, दोनों की बात कर लीजिए। तो एक वर्किंग प्लेस में है और एक वर्किंग प्लेस पे दोनों एक दूसरे को घूर रहे हैं और घूर रहे हैं, सीधे नहीं घूर रहे हैं, और एक मतलब कहीं झगड़ा हो गया होगा, झगड़ा होने पर देखिए एक ऐसे देख रहा है और दूसरा वैसे देख रहा है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का अपने व्यवहार को दर्शा रहे। अच्छा चलो मैं तुझे देख लूंगा, वो लड़की कह रही अच्छा तू निकल, तेरे को मैं देख लूंगी। अब ये आपस में देखने दिखाने की बात हो रही है कि तू मेरे साथ में मेरी बातों को इग्नोर कर रहा था, तू मेरी बातों को अपोज कर रहा था, चल मैं तेरे को देख लूंगी, मैं आज तेरे से अभी कभी नहीं बात करूंगी। लड़का भी उधर कह रहा है कि अच्छा पहले तो बड़ी लंबी लंबी बातें करी थी, अब बात नहीं कर रही हो, अब मेरा अपोज कर रहे हो। तो ये आपस में क्या है, ये रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स ही उसके व्यवहार को दर्शाता है। एक व्यक्ति बैठा हुआ कोई सामने बोल रहा है, जैसे मैं ही यहाँ बोल रहा हूँ, और आप मेरी बातों से, इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी बातों को लेकर के बड़े अप्रिशिएट कर रहे होंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल दे रहे हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया बता रहे हैं, तो एक तो अप्रिशिएट कर रहे होंगे। दूसरे लोग कह रहे हैं क्या पका रहे हो भाई, हो गया स्लाइड, आप क्या बिहेवियर लगाए, आगे चलो रे, आगे खत्म करो ने, क्या टाइम खोटा कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको क्या आ रहा होगा वो ऐसे नहीं होंगे,
मैं इसी बात को अगर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अगर रिपीट कर रहा हूं, तो रिपीट करने पर उनको लग रहा होगा, उनको इरिटेट लग रहा होगा कि अरे क्या एक चीज को बार बार कह रहे हैं, आगे चलिए ना, हो गया कहानी, आपने समझा दिया, हाँ हो गया, बिहेवियर खत्म, आगे चलिए। तो आगे चले जिनको वो समझ में आया होगा वो तो आगे चलने की बात करेंगे, जिनको नहीं समझ में आया होगा या जो लोग जिनको इंटरेस्ट आ रहा होगा इन बातों में, वो कहेंगे नहीं ठीक है, एकदम बढ़िया चल रहे हैं, चलने दीजिए। तो ये क्या है, ये सभी के अपने अपने व्यवहार है। सेम जब ये घटित हमारे सामने हो रहा है, हम एज अ लर्नर, अभी हम लर्नर हैं, तो हम लर्नर एक ऑनलाइन मीडिया पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम जब लर्न कर रहे हैं किसी चीज को, हम या किसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और हमारे व्यवहार इस तरह से प्रदर्शित हो सकते हैं, तो क्या ऐसे बच्चे क्लास में जब आते हैं तो उनके प्रदर्शित नहीं हो सकते हैं? ओबियस वहां पे भी प्रदर्शित हो सकते हैं। वह बच्चे भी यही जानते हैं कि क्या बिहेवियर लेकर के एक ही चीज को खींचे जा रहे हो, आगे चलो ना, आगे बात करो, नहीं हो गया है। तो बच्चे कुछ वहां पे भी होते हैं, बोर होते हैं, जो कि उनको पता है, वो इसी में डीप पढ़ चुके हैं, ये और डीप अध्ययन कर चुके हैं। बट वही कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको ये लगता है कि नहीं, हमें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार अगर आप बताइए तो हमें वहां पे पता चलेगा। तो ये हुआ बिहेवियर। चलिए थोड़ी और आगे बात करेंगे, थोड़ी और चर्चा करेंगे हम कि बिहेवियर की डिफिनेशन को देखेंगे कि बिहेवियर का डिफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है। तो परिभाषाओं को लिखेंगे। बिहेवियर को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, एक्शन या रिएक्शन के रूप में, किसी व्यक्ति का एक्शन या रिएक्शन। वो एक्शन या रिएक्शन कैसा, एक्सटर्नल या इंटरनल के रूप में। एक्सटर्नल, एक व्यक्ति होता है एक्सटर्नल, वो तुरंत दर्शा देता है, वह अगर कहीं पे भी है अपने मेज पे ही पीट देगा, हो गया, या फिर वह अपने आप को ही झटक देगा, तो आपको पता चल गया कि नहीं, इस बच्चे का व्यवहार इस तरह का अच्छा नहीं है। एक व्यक्ति अपने अंदर ही अंदर कूटे जा रहा है, उसको लग रहा है कि ये हो गया, एनफ हो गया, एनफ टू बी एनफ। तो ऐसे वह व्यक्ति अपने व्यवहार को वो दर्शाता है। जैसे यहाँ पे एक बच्ची है, यह बच्ची अपने व्यवहार को, अगर उसको अच्छा लग रहा है तो उसी व्यवहार को वह दर्शा सकती है अपने इमोजी के जरिए। जैसे हमने देखा जारा, हमने वीडियो में देखा जारा अपनी उसी कहानी को कैसे दर्शा रही है, अपनी कविताओं के माध्यम से दर्शा रही है, अपने कोट्स के माध्यम से दर्शा रही है, अपने कोट के माध्यम से बता रही है कि हम क्लास में हम ऐसे नहीं है, हमें कविता कहने का, हमें कविता बताने का, हमारे पास वो प्रतिभा है। तो व्यवहार इस तरह का होता है। व्यवहार को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, व्यवहार को देख सकते हैं, व्यवहार को सुन सकते हैं, व्यवहार को हम मेजर कर सकते हैं कि व्यवहार कितना, इसकी व्यवहार की कितनी टेंडेंसी है, कितना इसका व्यवहार कितना रूप का है। आप लोग जानते होंगे हमारा जो मेंटल हेल्थ एक्ट आया था 1985 में, मेंटल हेल्थ एक्ट सेम इसी रूप में था। जो हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे हैं, जब उनका व्यवहार अति सक्रिय हो जाता था, और अति सक्रिय में वह व्यवहार उनके खुद के काबू में नहीं होता था, तो वह बाहर होकर के अपने आपे से बाहर हो जाते थे, और आपे से बाहर होकर के अपना खुद का नुकसान करते थे और सामने पब्लिक को भी नुकसान करते थे। तो ऐसी कंडीशन में उस एक्ट में यह कहा गया कि ऐसे लोगों के लिए एक बढ़िया हॉस्पिटल बनाया जाए, जहां पे कि उनके वसन, पुनर्वसन, उनके केयर, उनके हर चीज के लिए वहां पे व्यवस्था करी जाए। तो ऐसे हॉस्पिटल खोले गए जिनको मेंटल हॉस्पिटल कहा गया। ऐसे ही जब उनको ऑब्जर्व किया जा सकता है, उनकी टेंडेंसी, उनकी प्रवृत्ति को यह मेजर किया जा सकता है, उनको यह नापा जा सकता है कि इनका व्यवहार अभी कितना, इनका टेम्परामेंट कितना है, इनका जो टेम्परेचर है वह कितना है, या इनका बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, इनका बॉडी लैंग्वेज कूल है, या इनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, या ब्लड प्रेशर लो हो गया है। आप देख सकते हैं, आप खुद को, आप अगर बात कर रहे हो तो सामने वाला बोल देगा कूल कूल कूल, कोई बात नहीं भैया, शांत हो जाओ। यानी आपका व्यवहार दूसरे वाले को पता चल गया कि अभी आप अशांत रूप में है, या अभी आपके अंदर में बौखलाहट आ गई है, या अभी आपके अंदर में आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप अपने आपे से बाहर हो रहे हो। सामने वाले को पता चल जाता है, इसलिए वह कहता है कूल कूल कूल, या फिर वो अपना खुद का रिएक्शन वह चेंज कर देता है, जैसे पता चल जाता है बच्चे को पता नहीं है। या जैसे आप भी अपनी क्लास में, अगर आप ऑब्जर्व किए होंगे, अपनी क्लास में देखे होंगे कि आप जैसे ही बच्चे को देखते हैं, आप कुछ पढ़ा रहे और बच्चा एकदम बिल्कुल वही सिर वैसे ही करा हुआ है, तो आपको पता चल जाता है कि हमने जो पढ़ाया पल्ले कुछ नहीं पढ़ा, बच्चे को पल्ले नहीं पढ़ा। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बदलते हो, अच्छा चलो हम कुछ दूसरा एग्जाम्पल देकर के बताते हैं, हम कोई तीसरा एग्जाम्पल देकर के बताते हैं। तो ये क्या है, यह व्यवहार क्लासरूम में या क्लासरूम के बाहर या कहीं भी हम व्यवहार को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके इंटरनल, उसके एक्सटर्नल रूप में, उसके एक्शन और उसके रिएक्शन के रूप में हम उसको सुन सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं, और हम उसको मेजर, हम उसको माप भी सकते हैं। तो ये क्या है, ये व्यवहार की कुछ परिभाषाएं हैं। चलिए थोड़ी और आगे चर्चा करेंगे। व्यवहार की परिभाषा हमने समझ ली, और मतलब क्या कि व्यवहार को हम यहाँ पे व्यवहार को माप सकते हैं, व्यवहार को देख सकते हैं, व्यवहार को मेजर कर सकते हैं। व्यवहार क्या है, एक प्रकार का एक्शन है, एक रिएक्शन है।
जो कि रिस्पॉन्स मिलता है एक्सटर्नल और इंटरनल के रूप में। चलिए थोड़ी और आगे बात करेंगे और चर्चा करेंगे, देखेंगे इन व्यवहारों के आधार पर कुछ सिद्धांत जो है वो बने हुए हैं। तो अधिगम के सिद्धांत इन्हीं व्यवहारों के आधार पे व्यवहारवादियों ने, संज्ञानवादियों ने और मानवतावादियों ने जो है बनाए ऐसे सिद्धांत। तो सिद्धांत में चलिए थोड़ी थोड़ी एक एक करके देख लेंगे कि किसके सिद्धांत कौन कौन से हैं। ये मैंने सिद्धांत यहाँ पे हिंदी में टेबल के रूप में पूरे सिद्धांत ही मैंने जो अधिगम के सिद्धांत है, अधिगम का सिद्धांत ही क्या है, अधिगम कहता क्या है। अधिगम कहता है कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम है। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करना ही अधिगम है। अधिगम अगर किसी ने कुछ सीख लिया, लर्न कर लिया, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। व्यवहार में परिवर्तन हो गया इसका मतलब उसके अंदर में क्या हो गया, उसने कुछ सीख लिया। तो सीख लिया, इसी सीखने को अलग अलग व्यवहारवादियों ने अलग अलग रूपों में समझाया है। कैसे समझाया हुआ है, अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है उन लोगों ने अलग अलग रूपों में बताया। किसी ने इसको व्यवहार के रूप में बताया, किसी ने इसको संज्ञान के रूप में बताया, किसी ने इसी को मानवतावाद के रूप में बताया। तो संज्ञान के रूप में जो व्यवहार है, व्यवहारवादी कौन कौन से लोग थे, व्यवहारवादियों में अगर आप जानते होंगे तो जानते होंगे वाटसन। वाटसन का अगर आपने नाम सुना होगा तो जेबी वाटसन जी वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो ये कहते थे कि आप मुझे कोई भी एक बच्चा दे दो, किसी प्रकार का बच्चा दे दो, मैं उसे चाहूं तो कुछ ही बना सकता हूं। मैं उसे चाहूं तो डॉक्टर बना सकता हूं, मैं उसे चाहूं तो इंजीनियर बना सकता हूं, मैं उसे चाहूं तो कुछ भी बना सकता हूं। ये कुछ भी बनाने का काम क्या है, कहने का मतलब उनका यही था, वो ये बताना यही चाहते थे कि बच्चे का व्यवहार परिवर्तन पॉसिबल है वातावरण के माध्यम से। वातावरण हम अगर ऐसा दे दें, हम उसको इस प्रकार से ढाल दें, इस प्रकार से उसको मोल्ड कर दें, इस प्रकार से उसको हम नर्चर कर दें, इस प्रकार से उसकी कंडीशनिंग कर देंगे कि बच्चा हम जो जैसा चाहते हैं वैसा हम उसको सेव कर सकते हैं। तो ये सेपिंग की भावना, यह सेपिंग की भावना कैसे निकली, यह बताने का काम किसने किया, यह जो है व्यवहारवादियों ने, वाटसन ने किया। वहीं अगर हम बात करें तो लार्क जी जो है वह लॉक जी क्या कहते हैं कि बच्चे क्या होते हैं, बच्चे टेबुला रासा के समान होते हैं। तो जॉन लॉक जी कहते हैं, लॉक का अगर हम बात करें तो कहते हैं कि बच्चे कैसे होते हैं, तो टेबुला रासा के जरिए होते हैं। टेबुला रासा मतलब कोरी स्लेट के समान होते हैं। तो उनको भी हम चाहे जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। ऐसे बच्चों का व्यवहार इस प्रकार का होता है। और वहीं पे प्लेटो जी ने कहा कि बच्चों का जो मस्तिष्क है वह खाली जो है होता है, वह स्लेट के समान होता है, उस पर चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो। तो ऐसे ये सारे लोगों ने, ये सारे व्यवहारवादी ये कहते हैं कि व्यवहार होता कैसे है। सबसे पहले व्यवहार को समझने का काम, व्यवहार को बताने का काम, व्यवहार को मन के विज्ञान में लेके आने का काम इन व्यवहारवादियों ने किया। व्यवहारवादियों की समझ में बात करें तो हम इनको बात करेंगे पुनर्बलन से बिना, यानी पुनर्बलन के बिना और पुनर्बलन के रहित, यानी पुनर्बलन से सहित। पुनर्बलन युक्त कौन कौन से थे और पुनर्बलन के बिना कौन कौन थे। तो पुनर्बलन के बिना की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आप पॉलो की बात कर सकते हैं। पॉलो का जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी वह व्यवहार की बात करते थे। वहां पे घंटी बजा करके वह कहते थे कि घंटी बजाएंगे, बच्चे को जो जानवर है जानवर को भोजन देंगे, तो घंटी बजा करके भोजन देंगे। एक समय आएगा भोजन हटा देंगे, खाली घंटी बजाएंगे, तो फिर भी देखेंगे कि उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, उसके लार की टपकने की कंडीशन अभी भी चालू है। तो ऐसे वह पाओलो का जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो अभी व्यवहार बदलने की बात करता है, व्यवहार को समझने की बात करता है। वहीं गुथरी जी बात करते हैं, गुथरी का समीपता सिद्धांत कहता है कि जितना समीप कोई उद्दीपक रहेगा, उतना ही व्यक्ति ज्यादा काम करने की कोशिश करेगा, उतना ही ज्यादा उसके प्रति आकर्षित होने की बात करेगा। और उद्दीपक जितना दूर होगा उतना दूर ही जो है लोग कहेंगे अभी समय है। जैसे मैं बात करूं आपके सामने, यही जो ऑर्गेनाइजर की बात कर लूं, मैं एज ए रिसोर्स पर्सन की बात कर लूं या एज ए आपकी बात कर लूं, तो आप सभी लोग करते क्या है, आप सभी लोग ये देखते हैं कि भैया समय कब है, 1 घंटे रह गया है, 1 दिन रह गया है, या 24 घंटे रह गए या 24 घंटे से कम रह गए, तो फिर आप जगते हो और फिर दिन रात एक करते हो, चाहे वो आपको पढ़ना हो, पढ़ाना हो, चाहे अपने काम को करना हो, चाहे जो भी करना हो। तो जब जितना समीप होता है आपकी धड़कन या आपके काम करने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है। वही उसमें अगर दूरी है, ज्यादा दूरी है, तो ज्यादा दूरी में आपका बिहेवियर क्या करता है, अभी सो लेते हैं, कोई नहीं अभी चलेंगे, धीरे धीरे दूसरे काम को देख लेते हैं, अभी उसमें टाइम है, उसको बाद में देखेंगे। तो उसको बाद में देखेंगे, इसका मतलब कि अभी उसमें समय है, वो अभी इतना समीप नहीं है, वो अभी इतना अर्जेंट नहीं है, क्योंकि हमारा उस पर हम अपना बिहेवियर नहीं लेके जा सकते हैं, हम अभी इसको तवज्जो दे सकते हैं। हम देखते हैं, हम कभी कभी फोन पे बात करते हैं। कल मेरी बात हो रही थी धनंजय सर से, तो मैं किसी और फोन पे बात कर रहा था, तो धनंजय सर ने मैं करीब लगभग 15-20 मिनट बात हुई। एक सर थे, मेरे पुराने मित्र थे,
मित्र क्या मेरे बड़े भाई समान है, तो उनसे मेरी बात हो रही थी। धनंजय जी ने मुझे कई बार 3-4 बार कॉल किया, फिर मैंने जब उनका फोन कटा तो मैंने धनंजय सर को सॉरी बोला कि सर क्षमा चाहता हूँ। तो बोले कि अरे भाई अभी सब कुछ हो गया है, शादी विवाह सब कुछ हो गया है, अभी कहाँ इतनी देर तक लगे हो। मैं कहा नहीं ऐसी बात नहीं है कोई, मेरे सीनियर हैं और भाई समान है, तो उनका फोन आ गया था, मैं उनका फोन काटना नहीं चाह रहा था, बड़े क्रूशियल मुद्दे पर बात कर रहे थे। तो अभी आप ये समझ रहे हैं, धनंजय जी से थोड़ी मिनट पहले ही बात हुई थी, तो मैं समझ गया था कि धनंजय सर का क्या मुद्दा हो सकता है। तो मैंने धनंजय सर को थोड़ा सा होल्ड करने का, धनंजय सर से मैं कहा कि धनंजय सर से मैं सॉरी बोल लूंगा, वो मेरे मित्र हैं, उनसे क्षमा मांग सकता हूं, बट जो बहुत समय के बाद उन्हें फोन किया है, उनका क्रूशियल मैटर है, तो उनको सुनना जरूरी है। तो ये बिहेवियर दर्शाता है कि किसके लिए आप ज्यादा समय दे रहे हैं, किसको कम समय दे रहे हैं, या किसको ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। तो इसको बताने का काम गुथरी ने समझाया हुआ था समीपता के सिद्धांत में। वहीं बात करें पुनर्बलन से युक्त की कितना पुनर्बलन देंगे और पुनर्बलन देने से कितना काम होगा, वह भी दर्शाता है। मैं सुबह सुबह में क्लास में लेता हूं, मैं एक और इसी पे एग्जांपल लेता हूं, समीपता की बात करता हूं, पुनर्बलन की बात करता हूं। ये सेशन होने से पहले 9 से 10 का मेरा 8 से 9 का मेरा सुबह का मॉर्निंग क्लास होता है मॉर्निंग में। तो मैं इसे पढ़ा रहा था और उसमें भी मैंने कहा कि भाई आज ये सेशन खत्म होने के बाद आप लोगों से 7-8 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों में जो बढ़िया जवाब देगा उसको आइसक्रीम मिलेगी, बढ़िया वाली आइसक्रीम मिलेगी। तो मैंने देखा कि जो बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते थे प्रश्न उत्तर में, वो देखिए कि आज सारे बच्चे एकदम पार्टिसिपेट, बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसका मतलब क्या कि कहीं ना कहीं पुनर्बलन भी आपके काम आता है, कि ये पुनर्बलन आपको बताता है कि हम अपने काम को, अपने व्यवहार को कितना और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करें, अपने व्यवहार को कितना और तरीके से प्रेजेंट करें। तो ये जो है वो थॉर्नडाइक ने और स्किनर ने अपनी बातों में समझाने का काम किया था। हालांकि थॉर्नडाइक ने अपने प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के बाद उन्होंने 3 नियम बताए थे। उन्होंने अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, 3 नियम बताए थे। किसने? तो ये बात करें कि थॉर्नडाइक ने एक तत्परता का नियम बताया था जिसको लॉ ऑफ रेडीनेस कहा था, एक उन्होंने अभ्यास का नियम कहा था जिसको उन्होंने कहा था लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और तीसरा नियम था लॉ ऑफ इफेक्ट। तो लॉ ऑफ इफेक्ट जो था, उसी लॉ ऑफ इफेक्ट के आधार पे स्किनर का जो सिद्धांत था वो आया। तो इस पर भी उन्होंने अपने व्यवहार को समझाने का काम किया था। किसने? स्किनर ने। अब स्किनर जी जो अपने पुनर्बलन की बात करते हैं, हालांकि स्किनर को कहा जाता है पुनर्बलन का नियम, बट स्किनर उसके जो पुनर्बलन के प्रणेता है वह नहीं है, हल है। हल को पुनर्बलन का प्रणेता कहा जाता है, जो हल ही पुनर्बलन को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किए थे। तो अब स्किनर जी अपने पुनर्बलन को कैसे बताते हैं? तो बताते हैं पुनर्बलन को हम कहेंगे खाली प्लस और माइनस, पॉजिटिव और निगेटिव रूप में बताएंगे। तो पॉजिटिव कैसा है और निगेटिव कैसा है, वो पनिशमेंट की बात ही नहीं करते हैं। वह कहते हैं कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगा और निगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा, बस 2 ही बातें हैं। दंड की कोई बात ही नहीं है, दंड देना ही नहीं है, दंड उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं। तो इसको देकर के बोले किसी को पॉजिटिव देना है, पॉजिटिव रीइंफोर्स देना है, तो सारे रीइंफोर्समेंट उसको दे दो, सारी बातें उसको रिवॉर्ड के रूप में दे दो। अगर निगेटिव देना तो उसका रिवॉर्ड ले लो, रिवॉर्ड दे दो, पॉजिटिव हो जाएगा, रिवॉर्ड ले लो तो निगेटिव हो जाएगा। इसी को लेकर के बताने का काम जो है उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया था। ऐसे ही जो है अगर हम बात करें व्यवहार को बदलने का काम संज्ञान के रूप में, तो सूच का सिद्धांत जिसको हम इनसाइट लर्निंग थियरी कहते हैं, जिसके प्रणेता वर्दिमर जी थे, तो उसमें सूच का सिद्धांत देने का काम कोहलर, जिसको कि हम गेस्टाल्ट थ्योरी के नाम से जाते हैं, तो यहाँ पे वर्दिमर, कोहलर, कोफ्का और लेविन, ये 4 लोग इसमें सूच का जो है इनसाइट लर्निंग थ्योरी, गेस्टाल्ट थ्योरी के रूप में लोगों ने काम किया था, जिसको संपूर्णता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये उसके रूप में काम किया था। फिर चिन्ह आकार का सिद्धांत, जिसमें चिन्ह को देख करके जो है इस पे टॉलमैन ने चूहों पर प्रयोग किया था, और उसमें देखा था कि बच्चे चिन्हों को लेकर के कैसे अपने आप को बनाते हैं। उन्होंने जो है एक मेज बनाया था और उस जो पजल मेज में उन्होंने प्रयोग किया हुआ था। वहीं जो है लेविन ने क्षेत्रवाद का सिद्धांत, फील्ड थ्योरी बताया था, फील्ड थ्योरी में मैं आगे चर्चा करूंगा। उन्होंने जो है पी और ई को बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था। तो व्यवहार कैसा होता है, व्यवहार को उन्होंने बताने का काम किया था इस फील्ड थ्योरी के नाम से। और सोपानिकी थ्योरी उन्होंने जो रॉबर्ट गैगने ने एक सोपानिकी बताई थी, जिसमें कि 7 प्रकार के सोपान उन्होंने बताए थे। सबसे लोवेस्ट सोपान की चर्चा उन्होंने करी थी, सबसे हाईएस्ट सोपान की उन्होंने चर्चा करी थी। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है वो सबसे हाईएस्ट बताया उन्होंने। तो ये बातें अलग अलग विचारों में बताते हुए सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात करेंगे, जहाँ पे कि बेबी डॉल का आपने नाम सुना होगा। बेबी डॉल
तो बेबी डॉल और एक टीवी के रूप में उन्होंने देखा कि कैसे किसी व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित किया जा सकता है, कैसे किसी व्यक्ति को हम एक कंडीशनिंग करके व्यक्ति को हम ज्यादा एक व्यवहार में ला करके हम उसका व्यवहार कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, वो जो है बंडूरा ने समझाने का काम किया था, बताने का काम किया था, इसलिए फेमस हुए थे। पियाजे जी को कौन नहीं जानता है, पियाजे के खुद के 3 बच्चे, उनकी खुद की 3 बच्चों पर उन्होंने प्रयोग किया, और सबसे फेमस जो कहानी और जो सबसे फेमस जो सिद्धांत है वह पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत पे बात करते हैं। वाइगोस्की को कौन भूल सकता है। वाइगोस्की जी कहते हैं कि समाज में रह करके ही बच्चा, संस्कृति में रह करके ही अपना बच्चा सीखता है। यहाँ पे इन्होंने 2-3 बातें उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा था कि बच्चा सीखता कैसे है, तो बच्चा सीखता है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर के रूप में। बच्चा सीखता कैसे है, तो वह मोर इंटेलिजेंस पर्सन के रूप में सीखता है। बच्चा किससे सीखेगा, बच्चा रेसिप्रोकल करके सीखता है, यानी बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन कैसे होगा, बच्चा जो उससे ज्यादा जानने वाला है, बच्चा उसके बीच में जाकर के, तो उसके बीच में, उनके बीच में जाकर के उनसे कुछ सीखता है, इसके फोल्ड करके सीखता है बच्चा रेसिप्रोकल लर्निंग की बात यहाँ पे उन्होंने करी थी, रेसिप्रोकेट करके सीखता है। तो ये सब बातें जो है वो व्यवहार को समझाने का काम किया था। नए में बात करें तो अब्राहम मास्लो का नीड बेस्ड थियरी है, जैसा हमारी आवश्यकता होती है वैसा हमारा व्यवहार होता है। हमारी आवश्यकता है आज पानी पीने की, तो हम उसमें प्रयास करेंगे। हमारी आवश्यकता पानी पीने की नहीं है, हम प्रयास करना भूल जाएंगे। इसमें अगर हम बात करें, आवश्यकता की बात करें, तो प्यासा कौवा की कहानी सभी लोगों ने सुना होगा। प्यासा कौवा की कहानी अक्सर सब लोग सुनते हैं कि एक कौवा था और वो कौवा उड़ते गया और उसको बहुत प्यास लगी थी। देखा एक घड़ा था, घड़े में पानी बहुत ही नीचे था और उसने प्रयास किया। क्यों? क्योंकि इसकी नीड थी, उसकी आवश्यकता थी, इसलिए उसने प्रयास किया। उसकी आवश्यकता थी, उसकी नीड थी, इसलिए उसने इतना ज्यादा प्रयास किया, और प्रयास किया तो जाकर के उसने पानी पी लिया। तो ऐसे जो है नीड थियरी को समझाने का काम किया था, अनुभवजन्य को समझाने, एक्सपीरियंस के आधार पर सिखाने की बात करी थी। और डेविड कोल्ब का तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग तो बहुत ही फेमस है। डेविड कोल्ब ने, उन्होंने क्या जबरदस्त उन्होंने स्टेप्स बताए हैं, वो अगर कभी समय मिलेगा तो पढ़िएगा। मेलकम नोल्स और पाउलो फेरेरे की आलोचनात्मक थ्योरी, उन्होंने अभी आज में 21वीं सेंचुरी में अगर कोई पढ़ता है तो मेलकम नोल्स को और पाउलो फेरेरे को पढ़ता है। सभी लोगों को पढ़ने की बात है। और यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि जो थियरियां हैं, जो सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत कैसे जो है हमें हमारे जीवन में काम आती है। तो ये कुछ सिद्धांत थे जिसकी चर्चा हमने करी थी। अब अगर हम व्यवहार को ही चर्चा करें तो देखिए, व्यवहार आता है हमारे लर्निंग के लिए। जैसा मैंने कहा कि लर्निंग के लिए व्यवहार काम आता है, ये KB स्क्वायर है। अगर हम लर्निंग को कहें तो लर्निंग को कहेंगे KB स्क्वायर। KB स्क्वायर को कहेंगे क्या? नॉलेज। तो नॉलेज कहाँ? चेंज इन नॉलेज, चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन बिलीफ, वो होता है लर्निंग। अगर हमारे व्यवहार में, जैसा मैंने कहा, अगर हमारा व्यवहार परिवर्तित हो गया तो हमारी लर्निंग होगी। अगर हमारे विश्वास में परिवर्तन हो गया तो लर्निंग होगी। अगर हमारे ज्ञान में परिवर्तन हो गया तो हमें लर्निंग हो गई। आज यहाँ पे है, मैं आपके साथ में चर्चा कर रहा हूँ। अगर आप मेरा नाम भी जान गए कि हाँ संतोष सर थे, वो आए थे हमारे बीच में, एक सेशन में आए थे, उन्होंने अपना एक सेशन हमारे सामने डिलीवर किया था। अगर आप इतना भी जान गए, मेरा नाम भी अगर जान गए, तो भाई तो भी मैं समझूंगा कि यार वहाँ मैं एक सेशन में, अमर ज्योति फाउंडेशन के एक सेशन में मैं जो है वहाँ सेशन मैंने लिया हुआ था, और वहाँ लगभग 80-87 लोग थे और वो मेरा नाम जानते हैं। वहां पे जो धनंजय देशमुख है, अमर ज्योति फाउंडेशन है, वह मेरा नाम जानते हैं। वहां पे अक्षय भाई जो है वो हमारा नाम जानते हैं। तो ये नाम जानना भी मुझे ऐसा फील होगा कि नहीं मुझे जानते हैं। तो मेरे आपके बदलाव, ये मेरा विश्वास, ये जो है व्यवहार, यही क्या होती है? एक प्रकार की लर्निंग होती है। आप मुझे इस रूप में समझ गए। क्या संतोष सर आए थे, उस समय पे आए थे, उन्होंने पढ़ाया था, केएल इंस्टीट्यूट के हैं वो, और वो है। तो ऐसे ये लर्निंग है। लर्निंग को कहेंगे क्या? KB स्क्वायर। तो KB स्क्वायर को समझ गए होंगे आप कि ये KB स्क्वायर है। चलिए थोड़ी और चर्चा करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक मैं चित्र आपके सामने दिखा रहा हूँ कि एक लर्निंग बिहेवियर क्या है। बिहेवियर प्रकार का परसेप्शन भी है। परसेप्शन है, जैसे देखिए चित्र में दिख रहा है, आप जरा चित्र में देख करके बताइएगा कि इन चित्रों से क्या दिखाई पड़ता है। कोई भी एक व्यक्ति, मैं ही कब से बोले जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपसे भी लूं कि क्या है ये। अगर आप इन चित्रों को देख पा रहे हैं तो आप इस चित्र को देखिए, और इस चित्र में क्या कहा जा रहा है और इस चित्र में क्या कहा जा रहा है, आपके परसेप्शन क्या है। यहाँ पे दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्तियों के परसेप्शन अपने तो बता रहे हैं। तो आप क्या समझ पा रहे हो इस चित्र से? चले कोई मुझे माइक ऑन करके बोले, इस चित्र से क्या दिखाई पड़ रहा है? सर गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं अपर्णा शर्मा। सर, इसमें ये दोनों चित्रों में पहले में दोनों व्यक्तियों का नजरिया दिख रहा है। एक इस पोजीशन में खड़ा है कि उसको वो 6 दिख रहा है,
और Very दूसरे good. व्यक्ति को वो 9 दिख रहा है। Wow. ऐसे ही दूसरे वाले में भी दोनों लोग बैठे हैं, तो एक को लग रहा है कि वो पानी का जो ग्लास है वो आधा है, तो और एक को लग रहा है कि वो आधा ग्लास पानी मतलब आधा भरा हुआ है। ये नजरिया है दोनों के कि किस तरह से हम देख रहे हैं किसी भी वस्तु को या किसी घटना को या किसी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सही बात आपने कहा अपर्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया, और जो चित्र है, चित्रों हाँ ठीक है, मुझे अनम्यूट करना था। तो आपने अपर्णा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत बढ़िया तरीके से पिक्चर्स को देखा और उसको समझा। सही कहा अपर्णा जी, जैसा आप कह रही थी कि एक व्यक्ति है, उसी चीज को, उसी ऑब्जेक्ट को कोई एक व्यक्ति उसको 6 समझ रहा है और दूसरा व्यक्ति उसी ऑब्जेक्ट को 9 समझ रहा है। उसका नजरिया है, उसका परसेप्शन है, उसका बिहेवियर है, वो बिहेवियर, उसने उस चीज को कैसे देखा है वो उसको समझ रहा है। दूसरा व्यक्ति, अगर ग्लास की बात करें तो ग्लास में ही एक व्यक्ति सकारात्मक तरीके से, जो ये वाला व्यक्ति है, उसी चीज को सकारात्मक तरीके से समझ रहा है। अगर हम बात करें, ये वाला जो व्यक्ति इसको वो सकारात्मक तरीके से समझ रहा है और इसको वह नकारात्मक तरीके से बातें वही कर रहा है। ये कह रहा है कि हाफ फुल है, फुल की बात कर रहा है, आधा भरा हुआ है, मतलब वह पूरे का आधा है, पूरे का आधा है। और ये कह रहा है कि खाली का आधा है। तो अगर हम खाली कर दे, आधा खाली है, आधा खाली है, आधा भरा हुआ है। एक बात कर रहा, आधा खाली है और आधा भरा, बातें वही है, बट एक में नकारात्मकता झलक रही है, बात वही है, और दूसरे में उसी कहने का सकारात्मकता झलक रही है, बस कहने का तरीका है। एक व्यक्ति कह रहा आधा भरा हुआ है, एक व्यक्ति कह रहा आधा खाली है, बातें वही है। गिलास है, गिलास आधा खाली है, या गिलास को कह दीजिए आधा भरा हुआ है, तो दोनों बात एक ही है। आधा खाली कर लीजिए या आधा भरा कर लीजिए, दोनों सेम है, बस कहने का नजरिया, कहने का परसेप्शन अलग है। यह उसके व्यवहार को दर्शाता है, यह उसके लर्निंग को दर्शाता है, यह उस चीज को कैसे अपने को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह दर्शाता है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए एक और पिक्चर देखते हैं। इस पिक्चर को आप देख पाएंगे, इसमें भी अगर आप देखेंगे अलग अलग क्लासें हैं, अलग अलग क्लासों में आप देखेंगे तो सारे बच्चे अपने अपने अलग अलग रूपों में हैं। कोई बच्चा लिखने की कोशिश कर रहा है, कोई बच्चा खेलने की कोशिश कर रहा है, कोई बच्चा जो है अपने हर्षोल्लास को बताने की कोशिश कर रहा है, कोई जो है अलग अलग रूप इसी क्लास में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्लास इस प्रकार के बिहेवियर की होती है। तो ऐसे व्यवहार हमारी क्लासों में दर्शाते हैं, दिखाई पड़ते हैं, हमारे जीवन में दिखाई पड़ते हैं, हमारे जो आसपास का सराउंडिंग है उसमें दिखाई पड़ता है। चलिए थोड़ी और चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। जैसा मैंने कहा, मैं बता रहा था फील्ड थ्योरी, कर्ट लेविन का। तो फील्ड थ्योरी में उनका एक जो फॉर्मूला है, बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला उन्होंने बताया था। बिहेवियर है क्या? बिहेवियर वो है जो कि वो एनवायरनमेंट और व्यक्ति से, उसके इंटरेक्शन से बनता है, कि जो बिहेवियर है वो बिहेवियर उसके फंक्शन, वो फंक्शन का कार्य करता है, एक एरिया में काम करता है। वो एरिया कैसा होता है? वो एरिया एक एनवायरनमेंट के रूप में होता है और उस व्यक्ति की क्षमता के रूप में होता है। तो उस व्यक्ति की क्षमता, उस व्यक्ति का वातावरण से मिल करके उसका जो है वो व्यवहार बनता है। तो इस व्यवहार को समझाने का काम फील्ड थ्योरी में कर्ट लेविन ने बताया था, समझाने का काम किया था कि व्यवहार एक्चुअल में है क्या। चलिए थोड़ी और चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि व्यवहार को हम समझेंगे कि व्यवहार के क्लासिफिकेशंस क्या है। क्लासिफिकेशन क्या है उसको हम समझेंगे। तो क्लासिफिकेशन को हम अलग अलग 4 रूपों में समझेंगे। 4 रूपों में समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि व्यवहार को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर बिहेवियर और मोलर बिहेवियर। मॉलिक्यूलर बिहेवियर कहेंगे और हम दूसरे को कहेंगे मोलर बिहेवियर। दूसरे को हम कहेंगे एक बिहेवियर जो है ओवर्ट और कोवर्ट बिहेवियर। एक होगा ओवर्ट बिहेवियर और दूसरे को कहेंगे कोवर्ट बिहेवियर। वहीं अगर हम बात करेंगे तो एक क्लासिफिकेशन और करेंगे, उसको वॉलंटरी बिहेवियर कहेंगे और इनवॉलंटरी बिहेवियर कहेंगे। वहीं अगर हम एक और लास्ट में कहेंगे तो एक को कहेंगे पॉजिटिव और निगेटिव बिहेवियर कहेंगे। हम ऐसे ही कहेंगे तो आगे और भी बिहेवियर के क्लासिफिकेशंस, जैसे हम कहें कि एक इंट्रिंसिक बिहेवियर और एक एक्सट्रिंसिक बिहेवियर है। यहाँ पे एक को कहेंगे इंट्रोवर्ट बिहेवियर और एक एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर कहेंगे। एक व्यक्ति का जो अंतर्मुखी व्यवहार और बहिर्मुखी व्यवहार, जिसको कि आगे व्यक्तित्व में समझाने का काम किया गया है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यवहार को। तो ये अभी मैं मेनली यहाँ पे 4 मैंने क्लासिफिकेशन आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि एक को कहेंगे मॉलिक्यूलर बिहेवियर और मोलर बिहेवियर, ओवर्ट बिहेवियर, कोवर्ट बिहेवियर, वॉलंटरी बिहेवियर, इनवॉलंटरी बिहेवियर, पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर। आइए इन सभी को थोड़ा सा और विस्तार में उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि क्या इनके उदाहरण हो सकते हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर बिहेवियर की समझेंगे कि ये मॉलिक्यूलर बिहेवियर क्या है। तो मॉलिक्यूलर बिहेवियर जो है उसको अगर हम कहेंगे कि ऐसा बिहेवियर जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है, जो बिना किसी थिंकिंग के जो है वो आ जाता है, हम अपने आप को प्रेजेंट कर देते हैं। तो जैसे हमने कोई विचार नहीं किया,
की और हमारी आंखें बंद हो गई, या हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि हम जैसे कभी कभी होता है ना, अक्सर आप लोगों के भी माइंड में घटित होगा कि हम उधर जो है भगवान की आरती कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, और भगवान की पूजा करते करते और हमारा दिमाग, हमारा मन कहीं और घूम रहा है, हम जो है वो हमारा विचार कहीं और चला गया, उसको कहेंगे अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। या हम कोई सोच भी नहीं रहे हैं, ये हमारे मन में नहीं, हम सोच कुछ और रहे हैं और कुछ हो रहा है और हो रहा है, तो उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर बिहेवियर। हम करना कुछ और चाहते हैं और हो जाता है कुछ और, तो उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर बिहेवियर, जहां व्यक्ति अपनी बातों को वह अपने विचार से, अपने बॉडी लैंग्वेज से नहीं करना चाहता है, जबकि वह उसके साथ में वैसा घटित हो जाता है। तो इस प्रकार के बिहेवियर को मॉलिक्यूलर बिहेवियर कहते हैं। वही अगर बात करें तो जो मोलर बिहेवियर है, वो मोलर बिहेवियर का है। इस प्रकार का बिहेवियर किसी थिंकिंग को लेकर के, थिंकिंग के बाद होता है। जैसे आपने किसी व्यक्ति को, किसी घोस्ट को देखा और घोस्ट को देखते ही आप डर गए, तो इस प्रकार के चीजों को कहेंगे क्या, वह कहेंगे, उसे कहेंगे मोलर बिहेवियर। जैसे मान लीजिए कहीं कोई सर्प है, या कहीं कोई घोस्ट है, या कहीं कोई भी ऐसी कोई चीज है और आपने देखा और आप डर गए, तो या फिर कोई नुकसानदायक कोई वस्तु है, उसको देखने से या उसके सानिध्य में आने से आप डर गए, तो डरने की घटना को, इस प्रकार की चीजों को कहते हैं, जो वह घटना होती है उसे कहते हैं मोलर बिहेवियर। तो मोलर बिहेवियर जो कि आप थिंकिंग करते हो और थिंकिंग करने के बाद आपने देखा, सोचा और सोच करके आप उसे डर गए, तो यह चीज, जैसे कहीं कहीं ट्रोमा होता है, ट्रोमा में जब कोई लोग चले जाते हैं तो ट्रोमा में क्या होता है, जैसे आप कहीं, आपका एक्सीडेंट हुआ है और ट्रोमा के साथ में ऐसा अक्सर ये मोलर बिहेवियर होता है, तो कहीं आप जा रहे थे और आपका एक्सीडेंट हो गया, या कहीं ऐसी कोई अप्रिय घटना हुई जो कि आपके जहन से निकल ही नहीं रही है और आप सोच रहे हो, उसी के बारे में सोच रहे हो और सोचते सोचते डर जा रहे हो, इस प्रकार के बिहेवियर को कहते हैं क्या, मोलर बिहेवियर। मोलर बिहेवियर में अक्सर कोई हार्मफुल वस्तु जो होती है वह हमारे सामने आती है और उसको देख करके हमें, हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, हम उसको देख करके डर जाते हैं। या फिर हम जैसे ही हमने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा, हमारे क्लास में कोई ऐसे व्यक्ति है, ऐसे कोई टीचर है जो कि हमें बहुत मारते हैं या हमारी बातों को नेग्लेक्ट करते हैं, तो उनको देख करके हमारा एटीट्यूड बदल गया, हमारा बिहेवियर बदल गया और हम जो है वहां पे अपने आप को अनकंफर्ट फील करने लगे। तो इस प्रकार का बिहेवियर क्या होगा, यह मोलर बिहेवियर होगा। यहाँ पे चाहा नहीं, आपने देखा नहीं है, बट फिर भी आपको ऐसी घटनाएं हो गई हैं, तो इसे कहते हैं मोलर बिहेवियर। चलिए थोड़ी और आगे बात करेंगे, कोवर्ट और ओवर्ट की बात करेंगे। ओवर्ट बिहेवियर क्या है और कोवर्ट बिहेवियर क्या है। ओवर्ट बिहेवियर में जैसे कहते हैं कि एक साथ में कई सारी बातें करना, बिहेवियर जो है वो हमारे अलावा, हमारे इंटरनल के अलावा एक्सटर्नल रूप में अगर कोई घटित होता है, आउटसाइड मतलब हमारे शरीर के अलावा हमारे बाहर से अगर घटित होता है, तो उसे कहते हैं ओवर्ट बिहेवियर। तो जैसे मान लीजिए कि हम कहीं कोई साइकिल चला रहे हैं, राइडिंग कर रहे हैं, या फिर हम कोई वॉलीबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, उधर हम बातें भी कर रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, तो ये सब चीजें अगर हमारे साथ में घटित होती है तो उसे कहते हैं ओवर्ट बिहेवियर। यानी हम वो चाह नहीं रहे, बट हम एकदम हैबिचुअल हो गए हैं। हम जैसे बात कर रहे हैं और हम गाड़ी चला रहे हैं, तो हमारा कैसा होगा, ये हमारा ओवर्ट बिहेवियर होगा। यानी हम उसपे कॉन्शियस नहीं है, हमारी एकदम एक्सरसाइज हो गई है, हम एकदम उसमें प्रैक्टिस्ड हो गए हैं, हम कुछ भी करें हमारा काम चलते रहेगा। महिलाएं या हम कभी रोटी बनाते हैं, तो रोटी बना रहे हैं, उधर बात भी कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, हमारा फटाफट चल रहा है, तो रोटी भी बन रही है और साथ में हमारा हो रहा है, हमारी सब्जी बन रही है, उधर हमारा काम हो रहा है। हम इधर मोटरसाइकिल चला रहे हैं और हम दूसरी तरफ हमारा ध्यान भी जा रहा है, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, हम नीचे नहीं देख रहे हैं कि हमारा ब्रेक जा रहा है, हम एक्सीलरेटर दबा रहे हैं या हम क्लच दबा रहे हैं, हम उसको नहीं देखते, बट हमारा संज्ञान हो रहा है। इस प्रकार के बिहेवियर को कहते हैं क्या, ओवर्ट बिहेवियर, जो कि हमें अंदर से वो चीज नहीं आती है, हम इसको बिल्कुल हैबिचुअल, हमारा शरीर ही काम कर रहा है, हमारा कॉन्शियस, हमारा माइंड उसको उतना कॉन्शियसली अलाउ नहीं कर रहा, कॉन्शियसली उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो फिर भी वो हो रहा है। इस प्रकार को कहते हैं ओवर्ट बिहेवियर। कोवर्ट बिहेवियर क्या होता है, कोवर्ट बिहेवियर होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो थिंकिंग करके अगर बात करे, ये ठीक उसका उल्टा होता है कि जो चीज दिखती नहीं है, हमारे सामने दिख नहीं रही है, बट फिर भी हम उस पर विचार कर रहे हैं, हम सोच नहीं रहे, हमारे सामने वो है नहीं, हमारे सामने, हमारे वातावरण के सामने नहीं है, पर फिर भी हम उसको सोच करके हम उसको विचार कर रहे हैं। इसे हम कहेंगे एक तरह से कोवर्ट बिहेवियर को हम जो है वह इंट्रोवर्ट कह सकते हैं, इसको हम इनविजिबल भी कह सकते हैं, जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है और हम वो व्यवहार कर रहे हैं, सच कर रहे हैं। जैसे हम बैठे हैं, बैठे हमें भूख लगी और हमारा विचार है हम घर पे जो है वो मैगी बना करके आए, हम घर पे जो है वो छोले बना के आए, हम घर पे खीर बना के आए, हमारा माइंड वहां पे है। या हमारा माइंड है कि जो है हमें कहीं किसी पार्टी में जानी है, पार्टी में जाना और वहां तैयार होने के लिए हमको 1 घंटे पहले जाना, हम क्लासरूम में बैठे हैं और हमारा दिमाग वहां कहीं और चल रहा है, हम कहीं यहाँ बैठे और कहीं चल रहा है, और इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं कोवर्ट बिहेवियर। कोवर्ट बिहेवियर जो हम बैठे यहाँ पे हैं यहाँ पे और सोच रहे हैं कहीं और पे,
इसी पर एक एग्जांपल, बहुत पहले का एक एग्जांपल है, मेरे पास समय तो बहुत कम है, बट फिर भी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल इस चीज को अगर शेयर कर लूंगा तो अच्छा रहेगा, ताकि आपको ओवर्ट और कोवर्ट में जो है पता चल जाएगा। दो महिलाएं थी और दो महिलाएं आपस में एक साथ में रहती थी। बहुत पहले की पुरानी कहावत है, जब गांव में लोग जो है खेतों में जाते थे घास लेने के लिए और जानवरों को घास खिलाने के लिए जाते थे, तो ऐसी कहानी में दो महिलाएं होती थी और दो महिलाएं साथ में जाती थी अपने जानवरों को घास लाने के लिए। तो घास मतलब वही जानवरों का चारा, जानवरों का चारा वो जाती थी साथ में लेने के लिए। तो महिलाएं उसमें दो महिलाएं एक साथ में जा रही थी और उसी में अचानक एक दिन ये हुआ कि दोनों महिलाओं को एक साथ में निमंत्रण आया किसी पड़ोस से कि आज हमारे यहाँ एक कथा वार्ता है, सत्यनारायण भगवान की कथा है और आप दोनों लोगों को उपस्थित होना है। तो उपस्थित होना है, तो उसमें एक बहन ने कहा कि बहन मैं तो नहीं आ सकती, मेरे घर पे 3-4 जानवर हैं, अगर मैं उनको नहीं चारा नहीं लेके आऊंगी तो मेरे जानवर बेचारे भूखे मर जाएंगे। दूसरी कहती है, जो दूसरी वाली लेडी होती है, वो दूसरी कहती है कि मेरे पास तो एक ही जानवर है और मैं रोज इतना मेरे पास इनफ है कि 2-3 दिन तक का चारा है और मैं अगर नहीं भी करूंगी तो चलेगा, बहन मैं आऊंगी आपके उस सत्यनारायण भगवान की कथा में मैं आऊंगी। तो एक तो जाती है जिसके पास एक जानवर होता है और दूसरी जिसके पास 2-3 जानवर होते हैं वो नहीं जाती है, वो बेचारी घास निकालने चली जाती है। तो जब वो घास निकाल रही है और घास निकालने पर वो जाती बेचारी वहां, बट वो सोच रही है कि भगवान की पूजा होती, मैंने नाहक ही मना कर दिया, भगवान की सत्यनारायण भगवान जी मुझे माफ कभी नहीं करेंगे और नहीं माफ करेंगे, अब कैसे भगवान को मैं कैसे मनाऊंगी, भगवान ये पाप मेरे से कभी नहीं होगा। भगवान की एक ये पूजा हो रहा है, एक संख पूरी हो गई होगी, दूसरी संख पूरी हो गई होगी, तीसरी संख पूरी हो गई होगी, चौथी संख पूरी हो गई होगी, 5वीं संख पूरी हो गई होगी, 5 संख अब ये बज रही होगी और वो मन ही मन वहां उपस्थित ना होकर के भी, कथा वार्ता के स्थान पे उपस्थित ना होकर के भी, वह खेतों में है फिर भी भगवान से बिल्कुल लीन है, भगवान की बातों को सोच रही है। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन में जो दूसरी वाली महिला थी जिसके पास एक ही जानवर था, वह उस मंदिर में बैठ करके वो भगवान की कथा वार्ता के साथ में बैठ करके भी उसका दिमाग भगवान की कथा वार्ता में नहीं है, उसका दिमाग संख में नहीं है, उसका दिमाग एक वार्ता में नहीं है, उसका दिमाग, उसका माइंड कहाँ पे है, वो ये सोच रही है तो बहन गई होगी आज उस एरिया का पूरा घास वो निकाल ली होगी, मेरे जानवर क्या खाएंगे, वो आज सारा कुछ कर ली होगी, उसका दिमाग वहां न रह करके उसका दिमाग वहां पे घास में है, जबकि वो बहन जो घास निकाल रही है उसका दिमाग वहां पे है। तो इस तरह से कोवर्ड बिहेवियर होता है, जो हमारे सामने होता है उसमें दिमाग ना होकर के कहीं और दिमाग हो, कहीं और व्यवहार हमारा चले, उसे कहते हैं कोवर्ड बिहेवियर। मेरे इस कहानी से, मेरे इस बातों से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था ओवर्ट और कोवर्ड बिहेवियर। चलिए, तो कोवर्ड बिहेवियर को एक समझ सकते हैं, जो हमारे सामने दिख रहा है और हम वैसा एक्ट रिएक्ट कर रहे हैं, और जो हमारे सामने नहीं दिख रहा है फिर भी हम उस पर एक्ट रिएक्ट कर रहे हैं, ये होता है उसका ओवर्ट और कोवर्ड बिहेवियर। चलिए थोड़ी और चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि वॉलेंटरी बिहेवियर क्या है। आप सभी लोग जानते हैं किसी की मदद करना, किसी की सहायता करना, या किसी ऐसे कामों में सहायता कर लेना। जैसे अभी हमारा बहुत ही बड़ा एक ऐसा समय, जो कि समय आने वाले समय में कभी भी ना आए, हम ऐसे काले वर्ष को, काले समय को हम कभी याद ना करें, ऐसा समय जो हमारा गुजरा है, कोविड पीरियड जो हमारा 1.5 साल 2 साल हमारा जो बीता है, उस वैसे समय में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने प्रिय को खोया है, बट बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत सारे प्रियों को बचाया है। वो बचाया हुआ इस तरह से बचाया हुआ, वो फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह पे वह दिन रात काम करके, वॉलंटियर के तरीके काम करके, जिनकी जिम्मेदारी थी वो तो काम कर ही रहे थे, जिनकी जिम्मेदारी नहीं थी वह भी उसमें काम कर रहे थे, चाहे वह किसी भी रूप में, एम्प्लॉय के रूप में हो या कहीं किसी रूप में हो, एनसीसी, एनएसएस या किसी भी रूप में कोई व्यक्ति जो है वह खाने, खिलाने, पिलाने, दवा या फिर किसी भी रूप में बेड बनाने में, हर चीज में जिन लोगों ने मदद करी वह थे। ऐसे प्रकार के बिहेवियर को कहते हैं वॉलंटियर बिहेवियर, जिसे कहते हैं परोपकार। परोपकार की अगर हम बात करें तो परोपकार क्या है, तो ये परोपकार वैसा है कि ऐसा कोई जो नदी है, वह नदी अपने लिए वह नीर का संचय नहीं करती है। जो फल है, वृक्ष कबहू नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर। तो ये जो है, जो नीर जो है वह नदी, वो अपने लिए पानी नहीं इकट्ठा करती है, वृक्ष कभी अपने लिए फल इकट्ठा नहीं करता है, वह दूसरों के लिए होते हैं। तो वह क्या होते हैं, वह वॉलंटियर बिहेवियर होते हैं। तो वैसे बिहेवियर का परिलक्षित होना। इनवॉलंटियर बिहेवियर क्या होता है, इनवॉलंटियर बिहेवियर का मतलब होता है कि जैसे हमारी इच्छा नहीं है, हम नहीं देख रहे फिर भी हमारा हो जा रहा है। जैसे हम हमारी श्वास का लेना, मान लीजिए हम श्वास ले रहे हैं, हम हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो सांस ये हमारा क्या है, इनवॉलंटियर बिहेवियर है। उसमें हम किसी प्रकार का हमारा कोई थिंकिंग नहीं, कोई हमारा कोई चीज हमारा नहीं है, वो नेचुरली हो रहा है। जहां पे नेचुरली हो जाए, हम कहीं देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, वो आंखों पे सूर्य की रोशनी को वो एक आंख के एक अपने हाथ के जरिए रोक करके वो देखना चाह रही है,
तो या फिर हम सूर्य की आंखों को देख करके, या कभी कभी आप गाड़ी चला रहे होंगे तो गाड़ी के आगे जब सूर्य की रोशनी आती है तो एक पर्दा लगा देते हैं, या एक ढक्कन होता है उस ढक्कन को लगा देते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, इसको बिहेवियर को कहते हैं इनवॉलंटियर बिहेवियर। तो वॉलंटियर बिहेवियर और इनवॉलंटियर बिहेवियर को हमने समझा जाना। चलिए थोड़ी और चर्चा करेंगे, बात करेंगे पॉजिटिव और निगेटिव बिहेवियर की। तो पॉजिटिव बिहेवियर को आप समझ सकते हैं कोई भी ऐसा अच्छा चीज जो कि सबको भाता हो, कोई ऐसी बात जो सबको भाती हो, जो सबके लायक हो, जिसको कि सब लोग अच्छी बात करते हैं, उसे कहते हैं पॉजिटिव बिहेवियर। जैसे सबको प्रणाम करना, सबको नमस्ते करना, सबका आदर करना, सबका सत्कार करना, जो समाज द्वारा स्वीकार्य बिहेवियर है, समाज द्वारा स्वीकार्य बिहेवियर, जो समाज स्वीकार करता है, ऐसे प्रकार को बिहेवियर को कहते हैं पॉजिटिव बिहेवियर, जो कि हमें धारा के प्रवाह में चलने हुए बात करता है। हमें धारा चल रही है, पानी का बहाव चल रहा है, पानी के बहाव से हम बहाव में बह रहे हैं, अगर पानी के बहाव के उल्टे जाएंगे तो निगेटिव बिहेवियर होगा। हवा का फ्लो, जो हमारा एयर का फ्लो है, हमारी आंधी का फ्लो है, आंधी का फ्लो अगर हमारा एक फ्लो में जा रहा है, तो अगर हम भी उसी रास्ते में जा रहे हैं तो हम उसके साथ में अगर निकल जाएंगे हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर हम उसके अगेंस्ट जाएंगे तो क्या होगा, हमें उससे तकलीफ होगी। तो ये पॉजिटिव बिहेवियर है जो कि समय के साथ में, सिचुएशन के साथ में घटित होता है, एक घटना के साथ में घटित होता है, और वैसा ही एक्ट रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल में और अगर एक आध एग्जाम्पल ले लें तो जैसे कहीं कोई अगर खुशी का माहौल है और उस खुशी के माहौल में हम आकर के अपना रोना पीटना अगर लगा ले तो लोग बोलेंगे क्या है यार तेरे पास, तू खुशी के माहौल में भी तू हमेशा रोनी शकल बना के रहता है, रोते रहता है। तो इस प्रकार का व्यवहार, वह व्यवहार वहां पे उचित व्यवहार नहीं है। या कहीं ऐसा जहां पे मातम का है, या फिर जहां पे किसी प्रकार की ऐसी घटना है जहां पे बहुत ही दुखी घटना है, किसी का, हम किसी भी ऐसे रिचुअल में पहुंच गए हैं, हम वहां पे पहुंच गए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में अगर हम हंसे, वहां पे ड्रम बजाएं, डमरू बजाएं, तो वो कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं होती है। तो ये क्या है, वो निगेटिव बिहेवियर होगा। तो निगेटिव बिहेवियर और पॉजिटिव बिहेवियर मैंने आपको समझाया कि जो सकारात्मक समाज से स्वीकार्य नहीं है, ऐसे प्रकार के व्यवहार करना, जो समाज के स्वीकार्य है ऐसे प्रकार के व्यवहार करना, उसे कहेंगे वो पॉजिटिव बिहेवियर। जैसे आप देख पा रहे हैं एक बच्ची है, वह व्हील चेयर से अपने दादाजी की मदद कर रही है, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोगों की मदद करते हैं, उसे कहते हैं पॉजिटिव बिहेवियर। वहीं ऐसे लोग जो कि अभी टीनेजर के बच्चे, देखिए टीनेजर के बच्चे हैं और वह स्मोकिंग कर रहे हैं, तो टीनेजर के बच्चों को स्मोकिंग करना ये अलाउड नहीं है। तो अलाउड तो किसी को भी नहीं है। आप किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में चले जाओ और वहां बहुत तेज आवाज नहीं करनी है, वहां बहुत ज्यादा बोलना नहीं है, तो ऐसे प्रकार के व्यवहार वहां पे उचित नहीं है। या ऐसे जगह पे जहां पे कि हमारा कहीं पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप में हमें फायर जलाना अलाउड नहीं है, वह हमें निगेटिव बिहेवियर कहलाते हैं। या ऐसे जगह पे जहाँ पे स्कूल्स हैं, वहां पे ऐसे मदिरालय या फिर ऐसे शराब वाइन की शॉप खोलना, या फिर वहां पे चट्टी खोलना जहाँ पे लोग आकर के, फालतू लोग आकर के इकट्ठा होते हैं, ये सब निगेटिव बिहेवियर है। तो ऐसे निगेटिव बिहेवियर जो है वो कि समाज से स्वीकार्य नहीं होते हैं। जो पॉजिटिव बिहेवियर होते हैं वो समाज से स्वीकार होते हैं। ये सब चीजें हमारे क्लास में परिलक्षित होती हैं, इसलिए सब की चर्चा जो है यहाँ पे करी गई है। आगे की बात करेंगे तो यह जो व्यवहार है वह व्यवहार और कैसे दर्शाता है, तो व्यवहार को देखेंगे, व्यवहार कैसे बदला है। तो व्यवहार को टेक्नोलॉजी ने बहुत बदल दिया है। आप देखेंगे 19वीं सदी में व्यवहार कैसा हुआ करता था लोगों का, तो टीवी बड़ी मोटी होती थी 19वीं सदी में, या 1990 के आसपास में, 19वीं सदी की नहीं बात करें, 1990 के आसपास की बात करते हैं, तो 1990 के आसपास में टीवी मोटी होती थी और लोग पतले होते थे, देखने वाला बेचारा पतला होता था। वहीं जब 2022 की टीवी देखिए, 22 की टीवी एकदम बिल्कुल स्लिम है और लोगों का शरीर देखिए वह मोटा होता जा रहा है। शरीर जो है ना, ओनर क्या कर रहा है, जो टीवी का ओनर है वह अपने आप को मोटा बनाते जा रहा है, रिमोट के माध्यम से वह रिमोट लेकर के टीवी को देख रहा है। वहीं वहां जाकर के बटन दबाना पड़ता था, उसके कान ऐंठने पड़ते थे, टीवी के जब कान ऐंठते थे जाकर के वो चलती, उसका चैनल बदलना पड़ता था जाकर के, उसको ऐड करके तब जाकर के लोग वहां हिलते थे, जाते थे, कई बार तो लोग पतले होते थे। टेक्नोलॉजी ने भी लोगों को क्या कर दिया है, उसके व्यवहार में परिवर्तन कर दिया है। टेक्नोलॉजी ने भी लोगों को बदल दिया है। आजकल हम अगर किसी से पूछ लें, क्या आपके इवन जो लोग, जो अभी यहाँ पे सारे लोग तो मैरिड होंगे, और सारे की नहीं बात करें तो ऑलमोस्ट लोग जो है मैरिड होंगे, हम सारे नहीं बात कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे बैचलर भी होंगे। तो अगर हम ऑलमोस्ट की बात करें तो मैरिड होंगे। अब मैरिड होंगे तो अगर मैं उनसे पूछ लूं कि कोई बहनें होंगी तो मैं बहनों से पूछ लूं कि क्या आपके हस्बैंड का फोन नंबर याद है, तो कहेंगे कि 3 लास्ट का 4 नंबर याद है, शुरू का 4 नंबर याद है, बीच वाला नंबर शायद मैं भूल जाऊंगी, ये होगा। अगर मैं किसी भाई से पूछ लूं क्या भाई आपके वाइफ का नंबर आपको याद है, तो बोलेंगे कि हाँ शायद 4 नंबर पीछे का कुछ इसका ये है और वो है, तो ये नहीं याद है।
अब भले उससे ज्यादा अगर कोई लवेबल व्यक्ति है तो उसका नंबर याद होगा। लवेबल व्यक्ति में बात कर लें तो पापा का या मम्मी का, तो मम्मी का पापा का नंबर, ये दोनों का याद हो सकता है, मे भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। वो भी टेक्नोलॉजी ने भुला दिया है। पहले क्या होता था, लोग उसको रगड़ते थे, एक बार घुमाते थे, फिर 2 बार घुमाते थे, फिर 3 बार घुमाते थे, कई बार घुमाते थे, तब जाकर के फोन लगता था और लोग उतनी दूर तक चल के जाते थे फोन को उठाने के लिए। आजकल तो सारी दुनिया जेब में है, जेब में है, तो जेब में लोगों को एकदम शांत बनाती है, लोगों को एकदम बिल्कुल बैठा दी है, और उसी का नतीजा है कि लोग जो है उसका व्यवहार इरिटेशन के रूप में, उसका व्यवहार जो है वो निगेटिव थिंकिंग के रूप में, उसका व्यवहार मोटापे के रूप में, उसका व्यवहार फैट के रूप में, उसका व्यवहार जो उतनी शार्पनेस नहीं रह गई लोगों में, उसके रूप में परिलक्षित हो रहा है। इन सब का नतीजा कहीं ना कहीं है, तो ये ड्रॉबैक जो है वो टेक्नोलॉजी का है। तो यह भी बच्चों में भी ये दिखाई पड़ता है। लोग कहते हैं कि कोविड पीरियड में बच्चे घर रह करके सीखे, तो टेक्नोलॉजी से सीखे, टेक्नोलॉजी ने सिखा तो दिया, बट वो चीजें बच्चों को कहीं ना कहीं एडिक्ट भी बना दी। बच्चे सोना भूल गए। जो बच्चे 8 घंटे 6 घंटे 7 घंटे सोते थे, वो बच्चे सोना भूल गए, वो 4 घंटे 5 घंटे सोते थे, या वो घर में ही रह करके बेचारे इरिटेट हो गए थे, और उनके अंदर में जो ग्रोथ है वो ग्रोथ नहीं हो रही थी। बच्चे विद्यालय में जाएंगे, फिजिकल रूप में जाएंगे, तो उनका बॉडी फिट रहेगा, और उनके अंदर में एनर्जी जो है वो एनर्जी लॉस होगी, तो नया कुछ खाएंगे, उनके अंदर में ब्लड का सर्कुलेशन होगा, उनके अंदर में जो हार्ट बीट है वह मेंटेन रहेगी, उनका जो सब कुछ है वह मेंटेन रहेगा। आजकल की बात करें टेक्नोलॉजी में, देखिए तो आजकल हार्ट अटैक की जो बीमारियां हैं वो बहुत तेजी से फैल रही हैं। तो इसका भी कहीं कारण है। लोग ये सोच रहे हैं कि हम हद से ज्यादा स्लिम हो जाए। भाई जितना है आप उतना ही रहिए, उससे ज्यादा अगर स्लिम बनेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा ही। तो ये सब चीजें जो है वह हमारे व्यवहार को परिवर्तित कर रही है। इसी व्यवहार के परिवर्तन होने का कारण है कि हमें जो है ये हमारे साथ में अलग अलग प्रकार की कंडीशन जो है वो बढ़ रही है। तो ये मैंने आपको टेक्नोलॉजी का प्रभाव भी साथ में बताया। चलिए थोड़ा सा एक पूरा रिवीजन ले लेते हैं, हमारे पास समय बहुत कम रह गया है, तो रिवीजन ले लेते हैं। रिवीजन में चर्चा करेंगे व्यवहार का, जितना मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, जो मैंने बात करी, तो व्यवहार मैंने आपके व्यवहार में ही समझा रहा था। तो व्यवहार क्या है? व्यवहार किसी एक स्टिमुलस को देख करके उसका रिस्पांस होता है, किसी एक उद्दीपक को देख करके उसका व्यक्ति का रिस्पांस होता है, उसे व्यवहार कहते हैं। व्यवहार को हम समझ सकते हैं एटीट्यूड के रूप में, उसके वैल्यूज के रूप में, परसेप्शन के रूप में, मोटिव्स के रूप में, एस्पिरेशंस के रूप में, उसकी क्षमता अक्षमता के रूप में, उसके लाइकिंग डिसलाइकिंग के रूप में, उसके व्यवहार को उसमें बदलने के रूप में हम व्यवहार को समझ सकते हैं। व्यवहार को ऑब्जर्व किया जा सकता है, व्यवहार को देखा जा सकता है, व्यवहार को मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है। ये सब व्यवहार के जो है वो मैंने आपको उसकी परिभाषा बताई थी। व्यवहार के बारे में मैंने कुछ व्यवहार से संबंधित कुछ लर्निंग थियरीज मैंने चर्चा किया था। व्यवहार की लर्निंग थियरी में मैंने आपको व्यवहार से संबंधित जो थियरीज है उसके बारे में बताया, थोड़ा सा चर्चा किया था। फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में मैंने थोड़ा सा चर्चा किया था। फिर मैंने जो है मानवतावादी सिद्धांत के बारे में मैंने थोड़ा चर्चा किया था। मैंने केबी स्क्वायर को भी बताया कि लर्निंग क्या है, लर्निंग केबी स्क्वायर है। नॉलेज, चेंज इन बिलीफ, चेंज इन बिहेवियर, उसे कहते हैं केबी स्क्वायर। तो उसमें दूसरी मैंने बात जो है वह मैंने चर्चा किया था, व्यवहार क्या है फील्ड थियरी में, कर्ट लेविन ने जो बताया था। तो व्यवहार क्या है? व्यवहार जो है वातावरण और व्यक्ति का मिला जुला इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन से व्यवहार बनता है। जैसा वातावरण होगा और जैसा व्यक्ति होगा, ये दोनों चीजें अगर मिल जाती हैं तो व्यवहार का निर्माण होता है। ये भी मैंने आपके सामने बताया। मैंने उसका क्लासिफिकेशन समझाया, कि क्लासिफिकेशन समझाया तो नहीं, मैं हर जगह पे मैं उसको माफी चाहूंगा जहां जहां मैंने कहा समझाया, जहां जहां मैं ये कहूंगा कि मैंने आपके सामने बताया, मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने बस आपके सामने शेयर किया है। तो मोलिकुलर बिहेवियर और मोलर बिहेवियर के बारे में हमने थोड़ी चर्चा करी, कोवर्ट और ओवर्ट बिहेवियर के बारे में थोड़ी चर्चा करी, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी बिहेवियर के बारे में चर्चा करी, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर के बारे में चर्चा करी। लास्ट में हमने देखा कि टेक्नोलॉजी का प्रभाव कैसे जीवन पर पड़ रहा है, व्यवहार पर पड़ रहा है, उस पर हमने चर्चा करी। तो ये था हमारा थोड़ा, जितना अब तक हमने चर्चा करी वो देखा। अब यहाँ से हम थोड़ी सी आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आप लोग कितना समझ पाए हैं, कितना नहीं जान पाए हैं। तो आपके सामने ये कुछ मैं शेयर कर रहा हूं, और इसमें आप लोग बताएंगे कि किससे क्या संबंधन हो रहा है। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे एक्सेप्टिंग है, रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पेक्टफुल है, काइंड केयरिंग है। इसको मैच करिए, किससे किसको मैच कर सकते हैं। एक तरफ लिखा हुआ 1 2 3 4 और दूसरी तरफ लिखा हुआ ABCD, तो आप किससे किसको मैच करना चाहते हैं। ये कुछ इमोजीज दी हुई हैं, इन इमोजीज को व्यवहार के रूप में बताइए कि एक्सेप्टिंग का व्यवहार कौन सा होगा, रिस्पॉन्सिबल का व्यवहार कौन सा होगा, रिस्पेक्टफुल का व्यवहार कौन सा होगा, काइंड केयरिंग का भी जो इमोजी कौन सी होगी, उसको मैच करके बताइए। चलिए जरा यहाँ से नाउ टर्न इज योर्स। हाँ, माइक ऑन करके बताइए या फिर चैट बॉक्स में ही बताइएगा किसको किसके साथ में आप जोड़ना चाहेंगे। पहले का, या अपना माइक ऑन अनम्यूट कर लीजिए सर, जरा सभी को अनम्यूट कर दीजिए तो, ताकि लोग बोलने लगे। हाँ
प्लीज ध्यान से देखिए, इमोजी भी बराबर ही दिख रही है। शिवानी जी किसको किसका बता रही है, पहले का क्या बता रही हैं? प्लीज अनम्यूट करिए। हाँ जी, वापस बंद होते का तिकडनं कौन कहना चाह रहे हैं कुछ? बंद करते पहले को किससे करेंगे? तो देखिए जैसे एक्सेप्टिंग है, ऑलमोस्ट करून टाकते ते किती दोनदा जॉइन होतं का? हाँ अब आवाज बंद कर लीजिए प्लीज, जहां से आवाज आ रही उनको बंद कर दीजिए। तो तुम्हाला हाय रे बाबा, तुम्हाला बिस्किट आहे का? बिस्किट पुढे आणून दो. तुम तो सर जी हम पूछना चाह रहे हैं और आप क्या बताना चाह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? हाँ चलिए अब मुझे बताइए इसके बारे में कि क्या होगा आंसर। पहले का ए, बी का एक, पहला बी का है एक। अच्छा चलिए तो ठीक है, बहुत सारे लोगों ने देखा, हम यहाँ पे कर ही देते हैं। देखिए यहाँ पे जो एक्सेप्टिंग है, अच्छा पहले मैं चैट बॉक्स भी ऑन ही करके रखूं। हाँ यहाँ पे जो एक्सेप्टिंग है, एक्सेप्टिंग को किसे करेंगे? देखिए यहाँ पे ये दो व्यक्तियों को स्वीकार किया जा रहा है, तो ये वाला है एक्सेप्टिंग, ये हो गया एक्सेप्टिंग। वही रिस्पॉन्सिबल में क्या है? देखिए ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है और ये व्यक्ति हो गया रिस्पॉन्सिबल, तो इसका मैच इससे हो गया, इस वाले बैच का इससे मैच हो गया, यानी इसका हो गया सी और पहले का हो गया क्या? डी। अब रिस्पेक्टफुल क्या है? तो रिस्पेक्ट किया क्या जाए? देखिए टीचर्स का ये रिस्पेक्ट कर रहा है, बिल्कुल रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे जो तीसरा है, तीसरे का क्या हो जाएगा? तो तीसरे का हो जाएगा बी। चलिए यहाँ पे जो चौथा है काइंड, काइंड क्या है? देखिए काइंड और केयर, यहाँ पे देखिए ये सिंबल होता है ना काइंड केयर का, यहाँ पे देखिए ए का क्या हो जाएगा? 4, ये हो जाएगा ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये हो गया ए। तो चलिए अगला लेते हैं, अगले को और देखिएगा जरा आप लोग। हाँ अगला लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पॉजिटिव बिहेवियर, मैंने इसके बारे में चर्चा करा था ना, पॉजिटिव बिहेवियर, नेगेटिव बिहेवियर, वॉलंटियर और इनवॉलंटियर बिहेवियर। चलिए इसमें चर्चा करिए, इसमें बताइए किसको कहेंगे पॉजिटिव बिहेवियर, किसको कहेंगे नेगेटिव बिहेवियर, किसको कहेंगे वॉलंटियर बिहेवियर, किसको कहेंगे इनवॉलंटियर बिहेवियर। चलिए सोच के बताइएगा। अच्छा चौथे का सी, चौथे का हो गया सी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चौथे का हो गया सी, नाइस। और चलिए रीता मीना जी एकदम सुंदर जवाब दिया आपने। और आगे चलिए श्रद्धा लिंगाड़े, आपने भी बहुत बढ़िया जवाब दिया है। और तो पॉजिटिव बिहेवियर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पहले का ये नहीं होगा, पहले का ये नहीं होगा, पहले का बी, एकदम राइट है, पहले का बी होगा, एकदम सही है, बी हो गया। और चाहिए वॉलंटियर बिहेवियर क्या होगा? तो वॉलंटियर बिहेवियर देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सेवा की जा रही है, यहाँ पे हो जाएगा ये दूसरे का क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी, ये हो गया। और इनवॉलंटियर बिहेवियर का जो अपने से श्वास ले रही है लेडी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए। बहुत बढ़िया, एकदम सुंदर, एकदम सुंदर, बी डी ए सी, एकदम सुंदर। परिणीता जी बहुत बढ़िया, परिणीता जी सब बहुत सुंदर। आगे चलते हैं, एक और लेते हैं, एक और जवाब लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न लेंगे, ये प्रश्न है, प्रश्न का जवाब देना रहेगा आपको। यहाँ पे एक प्रश्न है, लर्निंग मीन्स चेंज इन क्या? चेंज इन क्या? तो चेंज इन नॉलेज, चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन बिलीफ या ऑल ऑफ दीज। लर्निंग को क्या कहेंगे? लर्निंग को मैंने भी बताया था, चर्चा करा हुआ था। तो लर्निंग मीन्स चेंज इन क्या? हाँ जी, चेंज इन बिहेवियर। चेंज इन बिहेवियर, हाँ बट मुझे सर 4 लग रहा है, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज ही होगा मैम। तो यहाँ पे चेंज इन बिहेवियर मैंने बताया था KB², तो चेंज इन ऑल ऑफ दीज, लर्निंग मतलब चेंज इन ऑल ऑफ दीज। तो नॉलेज, बिहेवियर, बिलीफ एंड ऑल ऑफ दीज KB², तो ये हो गया KB²। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, एक और लेते हैं, तो और लेते हैं। अगला प्रश्न एक है, तो बिहेवियर को क्या कह सकते हैं? बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व, बिहेवियर कैन बी हर्ड एंड सीन, बिहेवियर कैन बी मेजर्ड या ऑल ऑफ दीज। व्यवहार को देखा जा सकता है, व्यवहार को देखा जा सकता है, ऑब्जर्व किया जाता है, मेजर किया जाता है, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये थे ऑल ऑफ दीज, और इसका मतलब आप लोगों ने ध्यान से सुना है, समझा है। और ये कुछ टेक अवे मैसेज है। डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर,
हमारे पास हम डिग्री ले लेते हैं, लोग कहते हैं कि वहां जाकर के पढ़ लो, वहां से पढ़ लो, और पढ़ने से हमें ज्ञान नहीं होता है। डिग्री इज जस्ट पीस ऑफ पेपर, हमारे पास कागज का वो टुकड़ा है। बट एंड एजुकेशन इज सीन इन योर बिहेवियर, जो आपकी शिक्षा है वो आपके व्यवहार में दिखाई पड़ती है। इस बच्ची को देखिए, बच्ची क्या है, वो पानी पिला रही है, किसी ऐसे व्यक्ति को पानी पिला रही है, वो पानी पिलाना, लोगों को बताना, यह है क्या, यह है बिहेवियर। तो आप अगर शिक्षित हैं तो शिक्षित आपके व्यवहार में दिखाई पड़ता है, आपका शिक्षा आपके व्यवहार में दिखाई पड़ता है। तो हमें शिक्षित होना है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन लेना है। तो इसी टेक अवे मैसेज के साथ में मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये कुछ रेफरेंसेस है, और थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को विश यू एडवांस हैप्पी दीपावली। दीपावली आपका, आप सभी का बहुत बढ़िया बीते और खुशहाली लेके आए। माता लक्ष्मी आपके जीवन में बहुत ढेर सारा प्यार और ढेर सारे खुशियां लेकर के आए, और आप सभी लोग जिस मनोकामना के साथ में लगे वो मनोकामना पूरा हो। थैंक यू सो मच अमर ज्योति फाउंडेशन का, और धनंजय सर का, और अक्षय सर का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हमसे पूछ सकता है। इस सेशन के इवैल्यूएशन जो लिंक है जूम ऐप के चैट बॉक्स में दिए है, सभी पार्टिसिपेंट कृपया करके उसको आप फिलअप करिए। और यदि इस सेशन से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चंस है पार्टिसिपेंट्स, तो आप सर जी से पूछ सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चन है तो माइक ऑन करके आप आपके जो क्वेश्चंस है वो सर जी से पूछ सकते हैं। यस, मिश्रा जी आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, आपने रेज हैंड किया है। अगर आप पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सीजी जोचिम, कैन यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट माय सेशन? प्लीज अनम्यूट योर माइक। हैव यू गॉट द सेशन? नो, आई कांट हियर यू। Yeah, please. No, your voice is not coming. I think there is some problems. Okay, और कोई है? तब तक लेंगे। क्लास में बच्चों को पानी पिलाओ। Sister CZ, you can write on the chat box. थैंक यू। चलिए, तो सुरेश जी का कोई जवाब था, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ था, उनका भी नहीं है। तो या कोई और भी है जो मेरे से कुछ पूछना चाहता है, मेरे से चर्चा करना चाहता है, तो मैं अपनी बातों को जितना मुझे पता है वो मैं शेयर करूंगा। थैंक यू सीजी, सिस्टर सीजी, थैंक यू सो मच। सर एक्सक्यूज मी सर। जी सर, एक क्वेश्चन था मेरा। जैसे मैं जिस कॉलेज में पहले जिस कॉलेज में मैंने डिप्लोमा किया है, हाँ, उस कॉलेज में एक स्टूडेंट था, हाँ, हमारा का, वो मतलब उसके हाइपर एक्टिव बच्चा था वो। बट उसको ना जो मतलब किसी के साथ रहना ज्यादा पसंद था। मतलब वो जब स्कूल आता था तो जैसे मेरा हैंड पकड़ के लगभग सारे दिन 70% साथ में रहता था। उसके बिहेवियर को कैसे चेंज किया जाए सर? देखिए, बिहेवियर को चेंज करने के लिए बड़े सारे उपाय हैं। थियरीज को भी अगर आप पढ़ेंगे तो जो कंडीशनिंग थियरी है, कंडीशनिंग थियरी अगर कारगर होती है तो वहां कर सकते हैं, शेपिंग कर सकते हैं, मोल्डिंग कर सकते हैं बच्चे को। अचानक से किसी का बिहेवियर एक दिन में नहीं चेंज होगा। बच्चा वहां पे अनकंफर्ट फील कर रहा है, तो अनकंफर्ट फील करने के लिए वह किसी की उंगली पकड़ता है या किसी का साथ चलता है। तो बच्चे को कुछ समय तक कंफर्ट रखिए, और किसी टाइम में उसे कोई चीज आप जैसे अगर आपको बच्चे को उसका बिहेवियर चेंज करना है या साथ निकालना है, तो जहां पे बच्चा 6 घंटे आपके साथ में रहता है, तो 6 घंटे में आप 10-10 मिनट का स्लॉट बनाइए कि 10 मिनट बच्चे को अकेले छोड़ेंगे, बाकी फिर आ जाएंगे। तो 10 मिनट छोड़ते फिर जैसे उसको बॉल खेलना, मतलब फुटबॉल खेलना अच्छा लगता था, वो बॉल को फेंकता था, फिर वापस दौड़ के लाता था, वैसे करते थे। पर वो फिर वो जैसे ही उनसे उस एक्टिविटीज से दूर हटते थे, तो वो जैसे या तो मेरे साथ या कोई भी और अदर हमारे डीएड वाले स्टूडेंट थे, क्लासमेट थे, उनके साथ उसको वक्त गुजारना मतलब अच्छा था। तो उसको कैसे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट किया जाए कि वो अपना काम खुद
हाँ, मतलब कर सके। उसको अगर वॉशरूम जाना था तो वो भी साथ जाता था, मतलब बाहर तक ले जाता था वो, फिर बाहर खड़े रहना पड़ता था, हाँ। तो वो सब चीजें। अब ऐसी कंडीशन मैंने आपको बताया ना, उसका जो सीधा सा जो है, पहली उसके कई सारे टेक्निक्स है, जैसे एक टोकन इकोनॉमी है, और एक मोल्डिंग टेक्निक्स है, और एक जो है वो इसके फोल्डिंग टेक्निक्स है, या फिर एक और टेक्निक की आप बात करें, कंडीशनिंग को ले सकते हैं। ये सारी जो टेक्निक्स है ना, टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जैसा कहा आपको कि बच्चा अगर आपके पास साथ में 6 घंटे रह रहा है, तो 6 घंटे में एक समय में एक दिन बच्चे का व्यवहार नहीं बदल सकता है। आप उसको 10-10 मिनट का स्लॉट बनाइए, 10 मिनट बच्चे को बाहर रखेंगे, फिर 20 मिनट बढ़ा दीजिए, फिर आगे का जो साथ है वो कम कर दीजिए, और दूसरा साथ जो है बढ़ा दीजिए। तो जैसे जैसे आप उसको अकेले छोड़ेंगे, अकेले काम करने के लिए छोड़ेंगे, वो बढ़ जाएगा, और जो आपका साथ है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। एक दिन में किसी का भी व्यवहार नहीं बदला जाता, उस व्यवहार को बदलने में थोड़ा समय लगेगा, और समय के साथ में उसका फॉलो बहुत जरूरी होता है। आप फॉलो अगर लेंगे तो सही हो जाएगा। पेरेंट्स उसके साथ में आते रहेंगे। पेरेंट्स देखिए, बच्चा पेरेंट्स के साथ में रहता होगा, तो पेरेंट्स का साथ छोड़ दिया, आपके साथ में आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो मोल्डिंग करने के लिए तैयार है। फिर उसके साथ यही सीन था कि उसके माता पिता दोनों डॉक्टर थे। हाँ। वो उसके साथ ज्यादा टाइम नहीं दे पाते थे, वो रहता था अपने दादा दादी के साथ। बस ऐसी कंडीशन थी कि जहां पे उसको एक व्यक्ति की जरूरत है, तो वो व्यक्ति जहां आपकी जरूरत है वहां पे उसको कहिए कि भाई तू अपने ग्रुप के साथ में रह, तो उसके ग्रुप के साथ में आप मोल्ड कर दीजिए। तो जहां उसके ग्रुप के साथ में मोल्ड होगा ना, आप शुरू में एक मैंने वीडियो दिखाया था, आपने देखा था शुरू का वीडियो? शुरू में मैंने एक वीडियो दिखाया था, वो वीडियो बहुत ही कारगर है ऐसे क्लासरूम वाला। हाँ, क्लासरूम का। जी। तो वो ऐसे वीडियो बहुत कारगर है, वहां पे किसी व्यक्ति को संभालने के लिए, या किसी व्यक्ति को मोल्ड करने के लिए, किसी बच्चे को मोल्ड करने के लिए उसके व्यवहार। ठीक है जी सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आगे का सेशन शायद और अगले जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, जो थैंक यू आपने सो हमें मच। समय दिया, हमारे पार्टिसिपेंट को दिया। इसलिए मैं आपका अमर ज्योति फाउंडेशन की ओर से बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने जो मार्गदर्शन, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज के हमारे नेक्स्ट सेशन के जो हमारे मार्गदर्शक है, नागपुर सीआरसी से आदरणीय जगन मुगदड़े सर जी हमसे जुड़ चुके हैं। मैं आदरणीय जगन मुगदड़े सर जी का अमर ज्योति फाउंडेशन की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत स्वागत है सर हमारे इस नेशनल लेवल सीआरई प्रोग्राम में। धन्यवाद अक्षय जी। गुड मॉर्निंग संतोष सर। गुड मॉर्निंग। मैं नमस्ते सर। पार्टिसिपेंट को, कैसे हो सर? ठीक है सर, ठीक है। बहुत बढ़िया लगा आपको देख करके। नाइस प्रेजेंटेशन सर। थैंक यू सर। 15 मिनट आपने जो एक्सटेंड किया, क्षमा चाहूंगा सर। नहीं क्षमा नहीं सर, बहुत अच्छा लगा, कोई बात। थैंक यू सो मच सर। मैं सभी पार्टिसिपेंट को आदरणीय जगन मुगदड़े सर जी का परिचय कराना चाहूंगा। आदरणीय जगन मुगदड़े सर जी सीआरसी नागपुर में एज अ प्रोफेसर की तौर पर कार्यरत है।